मेरे को कर रही था और थोड़ा का चलो ओके गुड आफ्टरनून मालिक होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे मालिक बेसिकली योर जर्नी स्टार्टेड विथ योर ग्रुप 2 दो कॉन्सेप्ट या दो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन में वर्क कर रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है जिनका अटेम्प्ट जैन 26 है जिनके लिए ऑलरेडी ग्रुप 1 खत्म हो चुका है एंड द सेकंड कैटेगरी इज बेसिकली फॉर May 26 दोज हु आर स्टार्टिंग विद ग्रुप 2 इटसेल्फ आप जैन 26 हो या May 26 है doesn't matter okay the basic is that the strategic management paper is a first time context you have done group 1 you have not done group 1 that also doesn't affect because this paper does not have any linkage with any other subject most importantly before starting anything please do understand one basic point क्या है सर सबसे पहला बेसिक पॉइंट है कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट इन योर सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सब्जेक्ट आई एम टेलिंग पेपर नहीं पेपर इज अ बिग पेपर बिकॉज एसएम इज इन कॉम्बिनेशन विथ एफएम ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो अपने बाद प्रशांत सर मिलने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का है अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि थोड़े से एक ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं एंड जो एसएम है वो आपका 50 मार्क्स का है तो आउट ऑफ टोटल 8 सब्जेक्ट्स 6 पेपर्स अलग कॉन्सेप्ट 8 सब्जेक्ट्स कैसे होंगे आपके लिए पहला होगा अकाउंट्स दूसरा होगा आपके लिए लॉ थर्ड विल बी टैक्स लेकिन टैक्स में 2 टैक्स है एक है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स जिसको अपन जीएसटी बोलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप 2 में आते ही है पहला है कॉस्टिंग नेक्स्ट है ऑडिट एंड वन मोर कॉन्सेप्ट इज एफएम एंड एसएम out of complete syllabus of the subject one of the smallest subject is strategic management first point one of the smallest why it is smallest कोई भी subject ले लो हर subject के number of hours compare करो you will come to know every subject will require bare minimum 100 hours thus SM requires approximately 60 odd hours for the content 60-65 hours okay ये range का content है I am saying discussing about content not question bank content one of the easiest point secondly a mindset is very clear कि strategic management sir this is what we can discuss from our BCom examinations also okay write down the strategy write down anything whatever we know we can read easily and we can enter into the examination hall and we can end up writing anything for strategic management but I'm telling you one of the complicated subject okay along with your one more theory subject that is audit is your strategic management the major reason is one of the biggest point is your concept of chat gpt तो पहले आज बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में कितने चैप्टर्स है कितना पॉइंट है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में पढ़ना क्या है व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड यू आर गिविंग आइदर जनवरी सितंबर होने के बाद भी सितंबर 25 एग्जामिनेशन के बाद भी ओके यू आर गिविंग इन जनवरी इफ यू आर गिविंग इन मे I am telling you no question will be repeated first clear this mindset I am telling you every question will be a unique question for you there will be no sample question अगर आप बोल रहे सर मैंने thousands of question कर लिए I am telling you the next question will be the new question for strategic management the database is ample the practical concepts are ample of it and the questions are not drafted by the person who are a chartered accountant 2 years back the paper were drafted by a chartered accountant a human being who does have its own restrictions buddy whose restrictions भाई साहब मैं question draft करूंगा मैं case study बना दूंगा I will see that point हाँ these are things are covered okay question is drafted okay so this question I drafted the question write the answer the basic point was this was a limitation but over a period this limitation has been removed hello आवाज आ रही है ना this आवाज आ रही है ना बड़ी this limitation was removed by ChatGPT. Sir, how ChatGPT removed this concept? ChatGPT made one thing very clear that whenever the question comes, it should not be repeated. You can give that command to the ChatGPT, and ultimately the blunder happens in our examination. The first mindset we should have whatever questions, ample of questions. The next question will be new one. It will not be a
ओके रिपीटेड क्वेश्चन। तो पहला माइंडसेट आप क्लियर रखिए कि आपको रिपीट मिलने वाला नहीं है। तो सर फिर ठीक है सर, रिपीट नहीं मिलेगा। ओके वी आर मतलब अपना ब्रेन मस्त है सर, वी आर इन इंटरमीडिएट। इफ इट इज नॉट रिपीटिंग वी आर स्टडीइंग बुक ना सर, एनीथिंग विल बी फ्रॉम बुक ओनली ना सर। मॉड्यूल ना, आईसीआई की मॉड्यूल इज देयर, you study the module completely. Okay, I am telling you, I can show you ample of question in previous pattern where the question has been asked and the answer is not in module. Answer is not in module. If your mindset is there कि भाई अगर मैं बुक पढ़ लूंगा पूरा and बॉस मैं उसको पढ़ के एकदम अच्छे से याद रख लूंगा, I will end up writing all answers. I am telling you, you are on the wrong direction. The answers are not in module. तो सर मॉड्यूल में नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब the answer drafting skills need to be at your end. So how it is so? मतलब I'm not getting this logic. चैट जीपीटी को आईसीआई ने कमांड दिया, ये रही मॉड्यूल, ओके ये रहे लास्ट ईयर के पेपर्स, मेरे लिए एक पेपर बना के दे जो लास्ट ईयर के पेपर में से एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए और क्वेश्चन सबकी स्टडी होना चाहिए। ओके चैट जीपीटी अप्लाई इट्स ओन ब्रेन। चैट जीपीटी मतलब इट इज नॉट एन नेचुरल इंटेलिजेंस, इट इज एन आर्टिफिशियल, जो अपना दिमाग कुछ और ही निकालता है और मां कसम पूरी खिचड़ी से एक और एक नई खिचड़ी बनाता है। और मां कसम नई खिचड़ी अपने को सर्व होती है, अपन सोचते हैं मां सर इट्स सेम। ओके वी नीड टू अंडरस्टैंड द अर्लियर ट्रेडिशन। अगर अपन 2023 2024 के पेपर देखे, 24 का स्टार्टिंग May 24, आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम आंसर वाज फ्रॉम मॉड्यूल। मॉड्यूल लिया, कंपेयर किया, द आंसर वाज डन। मतलब द लास्ट ईयर का पेपर September 24 स्टार्टेड द ट्विस्ट। ओके एंड Jan 25 मेजर ट्विस्ट, May 25 ओके क्लियर हो गया कि भाई अभी ये ड्राफ्टिंग स्किल बहुत अपने बाहर है, तो अपने को एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट जाना होगा। तो सबसे पहले मैं एक्चुअली क्लियर कर रहा हूं, ये माइंडसेट आप रखो, क्योंकि देखो सबसे पहली चीज तो आपको समझना जरूरी है कि आपका क्लास दोपहर को 2:30 बजे है आफ्टर द लंच। अरे बहुत 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 इंपैक्टफुल है वो। सबसे ट्रिक मेरे को बताओ, सुबह से लेकर रात तक के बीच में सबसे ट्रिकी पीरियड आपका कौन सा रहेगा? अरे यार खाना खाया, ओके नींद बात की बात है, नींद नहीं होता, ये सुखद अनुभव होता है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ नींद बॉडी, इट इज सुखद अनुभव। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यू आर सुनना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गया, ओके एंड डन एंड डस्टेड। तो दिस विल नॉट सर्वाइव। ओके आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ओके व्हाटएवर वी डिस्कस we need to apply everything into real life and then only we can be able to write the answers buddy, I'm telling you। तो सर मतलब अगर वो क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन नया आएगा, यानी अपन सर क्वेश्चन बैंक कर ले, करने नहीं, क्वेश्चन बैंक मल्टीपल है, 2 क्वेश्चन बैंक है पूरे बड़े बड़े, कंपाइलर पूरा है, एक इधर उधर से निकाल के पूरा, ओनली इंटर नहीं, इधर उधर से और चैट जीपीटी से अपन ने निकाल के क्वेश्चन डाले हुए अपनी बुक में। चैट जीपीटी को मैं भी तो वही कर रहा हूं, मैं भी तो वही करूंगा, लेकिन वो चैट जीपीटी मेरा कस्टमाइजेशन अलग है, सी इंस्टीट्यूट का कस्टमाइजेशन अलग है, बट वी हैव इंक्लूडेड एवरीथिंग। बट देन आल्सो फर्स्ट माइंडसेट ओके अपने को ये समझना है कि द फाइट विच विल बी डूइंग, ओके द फाइट विच विल बी हैंडलिंग इट आउट विल बी न्यू, द बैटल विल बी न्यू, इट विल नॉट बी सेम। अपन बैटल देखेंगे अपन देखेंगे वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3 कंपाइलेशन एवरीथिंग, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली while writing the answer will may or may not be there in your module। मतलब हम लोग जो मॉड्यूल पढ़ते हैं उसके अंदर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। सर उसको कैसे हैंडल करेंगे, हाउ विल हैंडल दैट वन? तो उसके लिए लॉजिकली पॉइंट समझिए। ओके योर एसएम विल बी, एफएम एंड एसएम दोनों मिला के कितने मार्क्स है? 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितना मार्क है? 50। अब मेरा पहला पॉइंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एसएम सबसे कम टाइम में होता है, तो 50 मार्क अप्रोक्सीमेटली। अगर कंटेंट की बात करूं, कंटेंट विल बी कवर्ड इन हाउ मच आवर्स? 60 आवर्स, एक 4-5 आवर्स हियर एंड देयर। 60 आवर्स में कंटेंट, क्वेश्चन बैंक नहीं बोल रहा हूं, कंटेंट आपका खत्म हो जाएगा 60 आवर्स। 60 आवर्स यानी 1 आवर का ऑलमोस्ट 1 आवर इज गोइंग फॉर 1 मार्क्स टेक्निकली ना। इफ आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मार्किंग स्कीम, इजी प्रोसेस, स्मॉलेस्ट सब्जेक्ट, this particular 50 marks will divide into 2 portion. One will be MCQ and one will be theory. MCQ, how much marks are there buddy? 15 marks. Okay, I hope 100 में से 30 marks समझ में आ रहा है buddy? 30 marks आपका MCQ 100 में से, 15 marks किस में से जाएंगे? पहले 15 मार्क FM और नेक्स्ट 15 मार्क SM।
और ये जो नेक्स्ट 15 मार्क जो एसएम के है, यू विल बी हैविंग टोटल ओके 7 + 1 क्वेश्चन की सीरीज. तो 7 + 1 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन विल बी फॉर 2 मार्क्स ईच एंड 1 क्वेश्चन विल बी फॉर, ये जो 1 क्वेश्चन है ना वो पपलू है. पपलू मतलब समझ रहा है, चुमू. इजी पार्ट, इजी प्रोसेस, वेरी इजी टू डू, वेरी इजी टू गो, नो प्रॉब्लम, इजीली क्लोज हो सकता है. द 7 मार्क क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन कंप्लीटली केस स्टडी. हियर definitely 4 options will be there, 4 options will be there, but it will not be easy directly to crack the answer unless until you are not able to apply the logic of that answer. तो application comes here, but technically okay, इसके आंसर अपने को दिखने तो वाले ही है ना. इसमें अपने को एक नया कुछ इनोवेशन नहीं निकालना है, बट आंसर दिखने वाला है. बट आंसर कौन सा करेक्ट है उसके लिए एप्लीकेशन जरूरी है. ये 35 मार्क्स जो है आपकी थियरी वाला, दिस इज डिवाइडेड इनटू क्वेश्चन 5 स्टार्टिंग पॉइंट. यानी 1 2 3 4 किसका होगा? एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा 1 2 3 4. तो बताओ 5 6 7 एंड 8, यानी हाउ मेनी क्वेश्चंस विल बी देयर इन एफएमएसएम पेपर थियरी वाइज? 8 क्वेश्चंस. 4 क्वेश्चन एफएम के होंगे, 4 क्वेश्चन एसएम. राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग फॉर एसएम. क्वेश्चन 5 विल बी कंपल्सरी, विच विल बी फॉर डैम श्योर 15 मार्क्स. 15 मार्क्स, 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 3 क्वेश्चन आने वाले इसमें. सर 3 क्वेश्चन कौन से? ओके, ए बी एंड सी. ऑल 3 go with the pattern. All 3 will be purely case studies, no single direct question. All three will be purely case studies. And this is very complicated area. Complicated मतलब ऐसा पॉसिबल है इनमें से एबीसी में से ऐसा होगा कि ए का आंसर ही ना हो अपने पास, अपने को दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा. सर जिसका आंसर ही नहीं हो कैसे करेंगे? अरे उसी को तो डिस्कस करना है. पर पहले मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं. पहला पार्ट. दूसरा पोर्शन 6 वाला, 6 7 8 दोनों में ए बी और 8 में ए बी और बी को समझने की कोशिश करो. क्वेश्चन 6 में ए और बी मतलब दो क्वेश्चन रहेंगे. क्वेश्चन 7 में 2 क्वेश्चन रहेंगे. क्वेश्चन 8 में 2 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन सेकंड का और एक ऑप्शन मिलेगा. एंड ये 3 में से वी नीड टू अटेम्प्ट एनी 2. और ये हर क्वेश्चन कितने मार्क का होगा? 5 मार्क के एवरेज. दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट वर्क्स. डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक में से रिवाइज वोमिट दिस वन. तो क्वेश्चन 8 1 क्वेश्चन विल बी श्योर शॉर्ट. Direct question. Explain the advantages of by merger. Okay, explain the advantages of alliance. Explain the advantages of diversification. Direct question. Explain what are the benefits of strategic management. Explain how the structure will work. Direct questions. Okay, question ये तो कंपल्सरी इंटीग्रेटेड केस स्टडी रहेंगे, ये और ये भी केस स्टडी रहेंगे. तो लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 5 and 6 and 7 केस स्टडीज? मेजर पॉइंट 8 compulsory. Yeah, this is till now the pattern which is going on. Again, institute can bring the surprises also, and we are aware about the institute surprises. Anytime नया कुछ concept, surprise, तेरी तो लग गई. Okay, तो प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा हो सकता है. अभी तक के पैटर्न में क्लियर है. क्वेश्चन 8 कौन सा है? थियरी, डायरेक्ट क्वेश्चन है. आप जैन का देखो. ओके, ये है. और अपनी जब तक बैच चल रही है तब तक सितंबर का अटेम्प्ट आ ही जाएगा. सितंबर के अटेम्प्ट में अपने को समझेगा. ये डायरेक्ट आ गया तो इसका मतलब पैटर्न अभी तक कंसिस्टेंट है ये वाले इसमें. बट ये दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? क्वेश्चन 5 में जो इंटीग्रेशन है वो चैप्टर्स के इंटीग्रेशन है. चैप्टर के इंटीग्रेशन, 1 क्वेश्चन विल कम एंड इट विल हैव द मिक्सचर ऑफ चैप्टर 2 एंड चैप्टर 5. दिस इज कंप्लीट चैप्टर बेस्ड इंटीग्रेशन. ओके, हो सकता है इसमें से एक आध ना हो, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर बेस्ड इंटीग्रेशन. 2 चैप्टर्स मर्ज विथ 1 क्वेश्चन. दिस पर्टिकुलर विल बी not chapter based integration, but it will be based on single chapter. अब ये क्वेश्चन का कोई भी सॉल्व करोगे, you will come to know it will always based on which chapters. कोई भी एक चैप्टर उठाओगे वो चैप्टर के अंदर ही इंटीग्रेशन मिल जाएगा. This question will be solved based on chapter, but these questions can be solved only based on understanding of all the chapters. अब before ये वाला स्ट्रक्चर अपने को समझा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल your mindset out of your mindset will be very clear कि सर मतलब
ठीक है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई विल डू वेरी क्लियरली, बहुत अच्छे से, आई एम वेरी गुड एट प्रैक्टिकल। एसएम में आई विल क्रैक दिस वन, आई विल क्रैक दिस वन बिकॉज इसमें लिखना नहीं है। ओके, जय माता दी। ओके, नहीं, समटाइम दैट जय माता दी ऑल्सो लक वर्क्स, sometime, and I will try to solve this question 8 sir. So with 15 marks, this 10 marks, I will solve it out. दो क्वेश्चन है सर 25 मार्क का, इधर उधर ठीक है। I will ensure कि भाई 45, 50, 60 इससे ज्यादा टारगेट नहीं किया। I will cover with other subjects. Those both the technically I hope everybody is into perception of both the groups. सिंगल ग्रुप में जाने का नहीं कभी भी, सिंगल ग्रुप के अपने ही डिसएडवांटेजेस है, बहुत ब्लंडर डिसएडवांटेजेस है, और आराम से मैनेज होता। इफ यू आर थिंकिंग कि भाई नहीं ऐसे भाई यार मैनेज नहीं होगा, इतना 6 पेपर, अरे उधर 8 पेपर होते थे 2 साल पहले तक, वो मैनेज होता था, तो इधर 6 पेपर भी मैनेज होते हैं। बस द ओनली थिंग इज यू नीड टू मैनेज वाइजली। नाउ द कॉन्सेप्ट कम्स इज सर व्हाइल सॉल्विंग दिस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर आवर अंडरस्टैंडिंग शुड कम ऑन टू वन मेजर पॉइंट which I want to show you. Okay, I want to just show you. Okay, again, I am not entering into any technical concept. मेरे को मालूम है आप पूरे रॉ हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ इंग्लिश तो पढ़ ही सकते अपन। तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का एक सैंपल बता रहा हूँ डायरेक्टली। एक सैंपल देखो, आपको सैंपल से समझ में आ जाएगा, और चाहिए तो ऐसे और सैंपल बता सकता हूँ, लेकिन अपना आज सैंपल देख लिया तो अपने को समझ में आता है, माँ कसम अपने को ध्यान रखना पड़ेगा भाई। लेट्स अंडरस्टैंड एक छोटा क्वेश्चन। ओके, चैप्टर 2 है ये, चैप्टर 2 का एक क्वेश्चन बैंक मैं दिखा रहा हूं आपको। ओके, एंड आई वांट टू, मतलब और सैंपल चाहिए, और सैंपल में बात करेंगे अपन, लेकिन ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 2 स्क्रीन पे दिख रहा है बड़ी सबके। अब कौन सी बुक है वो कुछ छोड़ दीजिए, ये एसएम का सिलेबस है, ये इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है जो मैंने निकाला हुआ है, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल डाउनलोड किए वेबसाइट से। आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इट आउट। तो लॉजिकली पहले देखो स्क्रीन पे, एवरीबडी यू आर अ स्ट्रैटेजी मैनेजर, आवाज लगी कि बड़ी, यू आर है, मतलब आप इमेजिन करो दिन में जितने सब्जेक्ट कर रहे हो हर चीज के मैनेजर बनते जा रहे हो। सुबह तुमने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो पढ़ोगे ऑडिटर हो तुम, कॉस्टिंग में पढ़ोगे भाई तुम कॉस्ट के मास्टर हो। ओके, एसएम में पढ़ोगे तुम कौन से मास्टर हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजर। ओके, शाम को कौन से मैनेजर बनोगे, फाइनेंशियल मैनेजर। मतलब एक दिन में कितने रोल है तुम्हारे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मल्टीटास्किंग। तो यू आर स्ट्रैटेजिक मैनेजर ऑल्सो फॉर विच कंपनी, टेक कंपनी। टेक कंपनी मींस विच कंपनी, कौन सी कंपनी होती है, आईटी बेस्ड, इट कैन बी ए मोबाइल की कंपनी या किसी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी होगी। लॉन्चिंग व्हाट, न्यू स्मार्टफोन मॉडल, यानी इसका नया स्मार्टफोन मॉडल है। तो पहले लाइन से क्या समझा भाई, ये कंपनी कौन सी है, एक टेक कंपनी है भाई। अरे आत्मा सबको सब झेप रहा है क्या, एवरीबडी। ओके, अच्छा और एक चीज, माई सेल्फ अमित आतेड़। ओके, आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। ओके, मैं सीए भी हूँ, सीएस भी हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास, मतलब डिग्री 9 क्वालिफिकेशंस आई एम होल्डिंग अगेंस्ट माय नेम। बट अभी इतने सारे क्वालिफिकेशन के लिए टाइम नहीं है अपने पास, क्योंकि मिला तो 1.5 घंटा ही है, क्योंकि मतलब ऐसा ना हो जाए चालू किया अरे माँ कसम खत्म। तो इसीलिए आई एम ए चार्टेड अकाउंटेंट। ओके, बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू आई एम हियर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई। माई लाइफ के 40 साल मुंबई में निकले, उसके बाद के मतलब आई एम इंटरेक्टिंग इन पुणे कंप्लीटली, मतलब आई एम टीचिंग इन पुणे फ्रॉम लास्ट वैसे तो 15-16 ईयर्स। लेकिन मेरी लाइफ जो पैदाइश है मेरी, वो कहाँ की है, मुंबई। तो मेरी लैंग्वेज में ना, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, सच्चे में बोल रहा हूँ, बहुत हाईली प्रोफेशनल। ओके, फॉर्मल भी पहना हूँ मैं, मतलब आए हाँ नहीं मतलब पहनना पड़ता ना भाई यार, मतलब विनोद सर ओनर अगर मेरे को कुछ बोले तो फिर समझना पड़ेगा। तो डे 1 तो टेक्निकली व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस पॉइंट, ऐसा हो सकता है मेरी लैंग्वेज में थोड़ी सी स्लैंग आए, एब्यूसिव नहीं आती है भाई, गाली गलौज नहीं, मतलब मैं देता नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं क्लास में नहीं देता, तो मतलब क्लास में नहीं निकलेगी, अब्यूसिव नहीं है, मेरी स्लैंग है बड़ी, और कुछ कर नहीं सकता इसको। मतलब मैं कोशिश बहुत किया, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट सो दैट वाई व्हेन आई इंटरेक्ट विद द पीपल आई ट्राई टू बिकम वेरी फॉर्मल। बट जब मैं फॉर्मल बनता हूं मैं अपने आप को खोया हुआ पाता हूं, तो फिर इसीलिए हर टाइम मेरी लैंग्वेज में थोड़ा सा स्लैंग आता है। स्लैंग का मतलब क्या होता है सर, ओके 2-4 वर्ड इधर उधर। जैसे एग्जांपल मैं मतलब मेरे से ना बहुत बार है ना बात करते वक्त है, क्योंकि जब मैं स्टेज पे खड़ा होता हूं मैं सीधा इसके कंटेंट में घुसा हुआ रहता हूं। मेरे को ये स्टेज मैं मतलब भारी, ये मेरी लाइफ है, और इसमें घुसने के बाद मेरे को है ना तूता निकलता है। तो ऐसा तेरे को समझा क्या, तेरे को समझाना,
क्लियर? ऐसा तेरे को निकलता है तो यार भाई साहब ऐसा कोई होगा बहुत फॉर्मल होगा, बोल रहा होगा ये आदमी क्या तेरे को बात करता है, तेरे को बात कर रहा है, ये क्या लैंग्वेज है, तू ता कर रहा है। अरे भाई इज्जत बहुत दे रहा हो, आप बोल सकता हूं लेकिन निकल नहीं रहा है। मेरी अंदर आत्मा से क्या निकल रहा है, इधर से आप निकल रहा है, इधर आने के बाद वो क्या हो रहा है, तू, मतलब आत्मा बरोबर है, आत्मा पे दोष मत लगाइए। तो ऐसा हो सकता है। तो मेरे कुछ वर्ड्स है एंड आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट यार। फिर बाद में मैंने कोशिश भी की फॉर्मल बनने की, फिर मैं बोला जाने दे भाई, वो जितना फॉर्मल बनने जाऊंगा फिर, और टेक्निकली आई एंश्योर कि मेरे प्रोडक्ट भी आगे वैसे ही रहे जैसे मेरे है, मतलब मेरे बेटे से भी मिलोगे वो ऐसे ही बोलेगा। तो मतलब वो कुछ वर्ड्स होते हैं मेरे, तो वर्ड्स में ना एक तोड़ करके वर्ड्स है। तोड़ मतलब अगर किसी ने पूछा भाई क्या है, कैसा है, तोड़ है, तोड़ मतलब एकदम सुपर। तो व्हेनेवर आई एम डिस्कसिंग यार ये तोड़ क्वेश्चन है, इसका मतलब सुपर क्वेश्चन है भाई साहब। ओके, माँ कसम इज वेरी कॉमनली ये पॉइंट है। अरे कोई बोलेगा सर मम्मी की कसम बार बार, अरे मम्मी के सामने ही खाता हूं कितनी बार, तो मतलब भाई सबसे तोड़ रिस्पेक्ट है मम्मी पापा का। अरे भाई उन्होंने तो लाया है, बट पॉसिबल ऐसा होता है। तो प्लीज अगर कोई एकदम फॉर्मल वाला बंदा है तो प्लीज थोड़ा सा, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आप अपने आप को कस्टमाइज कर लेना इस लेक्चर के लिए। मतलब हाँ, 1-1.5 घंटे निकलने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, नहीं मैं अच्छा इंसान हूं ना, मैं अच्छा इंसान हूं ना, तो मैं 1.5 घंटे के लिए ना आप थोड़ा कंट्रोल कर लो इमोशन को, है ना। 1.5 घंटे के लिए आपको ऐसा, इसलिए बहुत बार देखना, मैं बहुत रेयरली होता है मैं कभी पेरेंट्स से भी मिलता हूँ, मेरे को ऐसा डर लगता है क्योंकि किसी पेरेंट्स से मिल लिया, बोले क्या बात कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब पेरेंट्स, अरे मैं इसके हाथों में अपना बेटा बेटी, ऐसा कभी कभी ऐसा है। तो जोक्स अपार्ट, बट टेक्निकली जस्ट आई फॉर ह्यूमर साइड, एंड दैट्स आई नीड टू मेंटेन आउट बिकॉज व्हाइल डूइंग द कंटेंट एंड आफ्टर ऑल्सो लंच आई नीड टू एंश्योर द बैलेंस अप्रोच इज देयर, सो इट हैपेंस। तो जस्ट एट दिस पॉइंट, तो पहला पॉइंट जब मैं बोल रहा हूं, ये पहली लाइन से अपने को क्या समझ में आया बड़ी, अपन स्ट्रेटेजिक मैनेजर है कौन सी कंपनी के, टेक कंपनी। दूसरी लाइन क्या बोल रहा है, द कंपनी वांट्स टू टारगेट कौन से कस्टमर, कंज्यूमर, टेक सेवी हु वैल्यू इनोवेशन, यानी हमें वही कस्टमर चाहिए, बाकी सब जो जिसने डायलॉग वाला निकल जा वो निकल जा वाला, हमें कौन सा कंज्यूमर चाहिए। लाइन से क्या समझ में आ रहा है, ओके। सेकंड लाइन से क्या समझ आ रहा है, द कंपनी वांट्स टू टारगेट विच कंज्यूमर हु वैल्यू एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी, यानी जो इसको वैल्यू देते हैं वो कंज्यूमर चाहिए अपने को। अच्छा, कंज्यूमर वर्ड सुना है कभी? अच्छा, कंज्यूमर के साथ और कस्टमर ये मिक्स करे वर्ड, क्या ये दोनों सेम है? कस्टमर और कंज्यूमर, व्हाट इज द डिफरेंस? कस्टमर जो परचेस करता है, कंज्यूमर जो यूज करता है। आई होप एवरीबडी, ओके, जो अगर फीस दिए होंगे तो आपने नहीं दी, किसने दी? पेरेंट्स ने दी। तो पेरेंट कौन हुए हमारे लिए? कस्टमर। और आप कौन हुए? कंज्यूमर। मेरे को बताओ, प्रोडक्ट बनाते वक्त या प्रोडक्ट बेचते वक्त, मतलब प्रोडक्ट के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, किसको ध्यान में रखना चाहिए? कंज्यूमर को या कस्टमर को? तू खुश होना चाहिए ना, लेकिन बेचते वक्त प्राइसिंग ध्यान करते वक्त किसको ध्यान में रखना चाहिए? कस्टमर। स्ट्रैटेजी अपने को ये ध्यान में रखना हो, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट सोल्ड मतलब सेल करेंगे, उस टाइम पे हम प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स रखने हैं किसको ध्यान में रखें? कंज्यूमर या कस्टमर? कंज्यूमर। एंड प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते वक्त कस्टमर। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो इसमें ये किसको बात कर रहे हैं अभी? कस्टमर का? कस्टमर का नहीं, कंज्यूमर, यानी ये फीचर्स के ऊपर एम्फसाइज करना चाहते हैं, ठीक है। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ, मतलब आपको ये क्वेश्चन में बोला है कि क्या यूज करना है, तो क्या यूज करोगे? कस्टमर बिहेवियर यूज करो। ओके, पहला शब्द समझा। दूसरा, डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट न्यू स्मार्टफोन। तो अब मेरे को बताओ, ये पूरा पढ़ने के बाद मेरे को क्वेश्चन किधर, क्वेश्चन तो लास्ट लाइन में ही आई, पहले वाले 3 लाइन से पंचायती समझी, पंचायती मतलब इधर उधर की बातें। लास्ट लाइन के क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या करने बोल रहे हैं मुझे, क्या करने बोल रहे हैं? मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने बोल रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस बेसिस पे बनानी है? ओके, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर। आई होप इधर तक क्लियर है। तो मेरे को बताओ, क्वेश्चन लिखते वक्त मेरे को आंसर क्या लिखना है, मेरे को बनाना क्या है? आंसर लिखते वक्त क्या बनाना है, क्या बना के क्या देना है मेरे को? मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजर हूं, क्या बना के देना है? ओके, मेरे को मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, पर क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते वक्त जो ध्यान में रखना है वो क्या है? कस्टमर बिहेवियर। क्या मैं इधर तक समझ में आया? ठीक है। कस्टमर बिहेवियर अगर मेरे को देखना है सर, कस्टमर बिहेवियर मेरे को देखना है, तो कस्टमर बिहेवियर कहीं ना कहीं मैं अगर ये मतलब बुक में ही जाता हूं, मैं ये वाले इसमें जाता हूं, देखो कस्टमर बिहेवियर मैं बोल रहा हूं, तुम ऐसे आंसर में घुसो मत, हम
खाली अंडरस्टैंड कर रहे कि क्या एक्सपेक्टेशन है, वो तैयार करो, वो अप्रोच रेडी करो, देन स्टार्ट लर्निंग एसएम. अंटिल दैट डोंट गो विथ एसएम. अगर आप डायरेक्टली मैकेनिज्म जा रहे हो, ओके, रटने की कोशिश कर रहे हो, डोंट वरी, रटने को मैं रटा दूंगा. पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पेपर, मतलब पूरा एसएम का रिवीजन इज डन इन 1 आवर. कंप्लीट सिलेबस. आई एम नॉट लिविंग ओनली सिंगल क्वेश्चन. हाउ मच आवर? 1 घंटे का पूरा चार्ट रिवीजन है, जो आपके पास चार्ट बुक है. उसके अलावा 4 घंटे का पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है, और उसके अलावा पूरी मेन बैच जो डिस्कशन कर रहे हैं अपन. तो अगर मुझे रटना है, मुझे याद रखना है, मुझे रिटेन करना है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन रिटेन वंस योर बैच इज डन? रिटेंशन इज नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज राइटिंग द आंसर. एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट स्पीड. अरे 3 ही तो क्वेश्चन लिखने थियरी में, 3 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन एफएम के. सिलेबस पेपर खत्म होता है, प्रॉब्लम है लिखना क्या है ये समझ में नहीं आता. अभी आप बोलोगे सर मैंने तो ये समझ लिया, ये कस्टमर बिहेवियर को लिखेंगे. अब क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखो, ये कौन सा पॉइंट चल रहा? कस्टमर बिहेवियर सबको दिख रहा है बॉडी? ठीक है, कस्टमर बिहेवियर जो दिख रहा है, ओके, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए. सबसे पहला क्या नाम दिख रहा है? एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस का जस्ट मीनिंग बता रहा हूं. कस्टमर को तेरे बिहेवियर को चेंज करने के लिए पहला है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी तेरे को चेंज करने वाला कौन है? बाहर वाला. बाहर वाला मतलब कौन? मार्केटिंग स्ट्रेटजी. कोई कंपनी प्रोडक्ट बेचता है, क्या वो मार्केटिंग करता है? क्या इससे तू इन्फ्लुएंस होता है? बस, तो पहला कौन सा इन्फ्लुएंस? एक्सटर्नल. भाई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, उसके अंदर का मसाला छोड़ो, कंटेंट छोड़ो, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो नहीं है. तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस. दूसरा नाम क्या दिख रहा? सर इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या? एग्जांपल, तूने ये प्रोडक्ट पहले भी परचेस किया होगा, तेरे को पसंद आया होगा, तेरी आत्मा गवाही दे रही है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. इंटरनल इन्फ्लुएंस. 2 चीज, ओके, इवन इफ you are joining the batch, you'll be considering 2 influences. You are considering 2 influences. What are the 2 influences? One is external and one is internal. External influence, okay, मार्केटिंग है, किसी और ने कुछ बोला है, okay, किसी कुछ पॉइंट बताया हुआ है, okay, आपके सीनियर ने कुछ बोला है, वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस. इंटरनल इन्फ्लुएंसेस आपका इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हो. दैट इज कॉल्ड विच इन्फ्लुएंसेस? इंटरनल. ठीक है, तो कस्टमर बिहेवियर में पहला पॉइंट बताओ मेरे को. कस्टमर बिहेवियर में पहला पॉइंट, पहला इन्फ्लुएंस करने वाला पहला पॉइंट एक्सटर्नल. दूसरा, तीसरा क्या होगा फिर? ये दोनों इन्फ्लुएंस होने के बाद तू क्या करेगा? यानी तूने बैच परचेस किया, ठीक है, अब बैच परचेस कर लिया, खाली कहानी इधर एंड होगी या पोस्ट डिसीजन भी होगा? पोस्ट डिसीजन मतलब बैच खत्म हुआ, उसके बाद तू फीडबैक देगा. ओके, 2 चीज हो सकती है. तेरे को कस्टमर सपोर्ट लग रहा होगा. एग्जांपल, बैच इज गेटिंग एंडेड समथिंग अराउंड इन सितंबर, जो भी सितंबर के टाइम तक अपना एंड होएगा. अपने को तो लंबा टाइम जाएगा नहीं, क्योंकि अपने लेक्चर सबसे कम टाइम, ओके, जी ऐसे. लेकिन अगर इसको 2-2.5 घंटा देते तो और भी कम टाइम होता, लेकिन इतना नहीं दिया. तो अपने पास कितने घंटे? अपन 1.5 घंटा. ओके, अप्रोक्सीमेटली अपन बात करेंगे तो 50-50 डेज अप्रोक्सीमेटली, जब नंबर ऑफ आवर्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन बैंक एंड अदर थिंग्स हो सकता है. तो सर सटीक पॉइंट पे बात करें, बैच खत्म हो गई सितंबर, एग्जाम देगा तू जनवरी बीच में. ओके, जनवरी की बात कर रहा हूं, मई वाले के लिए तो और लंबा टाइम है. ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने खुद पढ़ेगा. उसमें डाउट आ सकता है, तो डाउट सॉल्व कैसे करेगा? डाउट कैसे सॉल्व करेगा? अच्छा, डाउट नहीं आएगा कभी जिंदगी में? अच्छा, पूरा बैच होने के बाद डाउट ही नहीं आता क्या कभी? ग्रुप 1 वालों को पूछो, डाउट नहीं आता क्या? आता है ना. अरे आएगा ही, बैच. देखो लॉजिक समझो, एकदम सिंपल लॉजिक है. कंप्लीट डे यू आर सिटिंग इन द क्लास एंड ऑलमोस्ट यू आर इंटरेक्टिंग विद एवरीवन. One fine point, okay, whenever I was explaining you concept, that time you, okay, is gone or somewhere you are out, and you note it out. While noting, you note it out. Okay, note हो गया, notebook में हो गया, textbook हो गया, सब हो गया. लेकिन जब अपन वापस पढ़ रहे हैं, अपने को याद ही ना रहा ये लिखा क्यों है. और इस टाइम पे क्या करने का फिर? अच्छा, कुछ करने का नहीं सर. मेडिटेशन, ऐसा भगवान आएंगे और दिखाएंगे, अच्छा ये उत्तर है प्रभु, ओ प्रभु, ऐसा होएगा क्या? अरे तुमको कर्म करने पड़ेंगे, बताओ व्हाट यू विल डू. दोस्त को कॉल करोगे, ओके, मेरे को नहीं कॉल करोगे. मतलब माँ कसम, तुम डॉक्टर के पास गए, उसको बीमारी बताई, और डॉक्टर ने तुम्हें बोला ये भाई डोलो ले ले. डोलो लेने के बाद बुखार नहीं गया, दोस्त को पूछा, दोस्त बोलना क्या तू कैसे ठीक हुआ? वो भी बोलेगा डोलो से. तूने और डोलो ली, उसको तो ठीक हो गया, तुम्हारा किडनी गया. अबे यार, तेरा डॉक्टर इधर है ना, आई एम योर डॉक्टर भाई. तेरे पास नंबर रहेगा, सब कुछ रहेगा, तेरे को मेरे को मैसेज करना है, सिंपल सा आंसर.
तो मैसेज करेगा, मैसेज करेगा। अब मेरे को बताओ, तेरे मैसेज करने के बाद दो में से एक चीज होगी, या तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, अरे दो चीज होगी ना, या तो नहीं कर, आधा करूंगा आधा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होएगा। या तो दो चीज क्या होगी, आई विल रिस्पॉन्ड और आई विल नॉट रिस्पॉन्ड। अब मेरे को बता, तूने डिसीजन ले लिया बैच लेने का, ओके, अब ये सब चीजें किस में जाएगी, ये सब किस में जाएगी, पोस्ट डिसीजन। वेदर भाई यार फीडबैक देगा, अरे यार मैं इनको क्वेरी पूछ रहा हूं, क्वेरी आंसर दे रहे कि नहीं दे रहे, अच्छा इनका टेक्निकल टीम कैसा है, टेक्निकल पॉइंट, ऑनलाइन वालों के लिए टेक्निकल टीम का कॉन्टेक्स्ट ज्यादा काम करेगा, अच्छा ऑफलाइन वालों के लिए भी टेक्निकल टीम अगर कुछ पॉइंट लगा, ये सारी चीजें पोस्ट डिसीजन मेकिंग है। और इसके बाद यू विल बिकम इन्फ्लुएंस टू किसी और के लिए। कुछ समझ में आया? तो यूजुअली अभी तक जितना पॉइंट आया, ओके, जस्ट बेसिक में मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने एसएम कहीं पर भी पढ़ाया नहीं, कुछ कंक्लूड मत करो, अरे मां कसम पढ़ा भी दिया और मालूम ही नहीं पड़ा क्या पढ़ाया। मैंने पढ़ा नहीं, मैं कुछ समझा रहा हूं। तो मेरे को बताओ कितने पॉइंट है अपने को कस्टमर बिहेवियर में, कितने पॉइंट है? 4। नाम एंड पोस्ट डिसीजन, एक्सटर्नल, इंटरनल, डिसीजन, पोस्ट डिसीजन। ओके, मार्केटिंग देखिए, अरे प्रोडक्ट अच्छा लगा, लेज लेज चिली फ्लेक्स, वाह वाह वाह। एक्सटर्नल, इंटरनल, पहले लेज खाया था, अच्छा था, हवा भी थी उसके अंदर लेकिन अच्छा था, आई होप लेज के अंदर देखा होगा। फिर आपने लिया लेज, वो चिली वाला फ्लेवर, ओके, डिसीजन। परचेस, परचेस करने के बाद तुमने खाया, मिर्ची भयंकर, एग्जांपल फर्स्ट सिचुएशन। पोस्ट डिसीजन, किसी को भी कमे, अरे भाई चिली वाला मत ले, लग जाएगी अगले दिन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वन, लॉजिक समझा क्या? तो ये डिसीजन मेकिंग है। अच्छा, ये टीवी परचेस करते हुए भी हो सकता है। अब मेरे को बताओ, अगर टीवी परचेस किया तो सबसे पहले, अच्छा घर पे टीवी परचेस किया होगा ना कभी, मतलब तुमने नहीं किया होगा, पापा ने किया होगा, तो क्या प्रोसेस रहेगा? अरे पापा गए, चलो 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 रास्ते में, अरे टीवी ले लो, पुट टीवी, ऐसा किया क्या? पहले एनालिसिस किया, कौन सा टीवी लेने का, ओके, प्लाज्मा लेने का, एलईडी लेने का, एलसीडी लेने का, कौन सा लेने का, इसके एनालिसिस किए। ये सब कौन से बेसिस पे किए? दो इन्फ्लुएंस, कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल। इसके बाद तुम गए होगे डिसीजन लेने, डिसीजन मतलब वो डिसीजन लेते हुए भी आपने कोटेशन कंपेयर किया होगा 2-3 जगह। उसके बाद वो फाइनल होने के बाद तुमने पोस्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी जिसके अंदर आपने फाइनल किया, चलो इधर से टीवी ले लिया, और टीवी लेने के बाद मां कसम ये तो है, रिमोट को बार बार मारना पड़ता है रे, ऐसा भी तो, अरे टीवी को मालूम है, टीवी को मारते नहीं है, किसको मारने का? रिमोट। टीवी अपने आप चलता, ओके, एंड दिस इज वेरी कॉमन इन इंडियन कल्चर, आई होप एवरीबडी वुड एक्नॉलेज दिस। in your family also you have seen that home that whenever something is not working in India, we don't call it customer service support, we don't rely on customer service support, we rely on this hand, okay, and first hand is of mama, okay, और उसके बाद पापा, मतलब डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो। तो दो चीज मैं कसम से बोल रहा हूं, कभी कभी ये नहीं चला तो इसको ऐसे ऐसे करते हैं, चल जाता, बंद नहीं होना चाहिए, रुका। हाँ, तो ये एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये था कस्टमर बिहेवियर। अब इसमें कंटेंट देखोगे आप, ओके, वो जो अपन ने डिस्कस किया कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वगैरह, ये सब बेस एडवर्टाइजिंग ऐसा वैसा, ये इंपैक्ट रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन वापस आते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, वापस क्वेश्चन पे आइए। मैं वापस बोल रहा हूँ, आज मेरे को दो एक क्वेश्चन बताने, समझाना है, उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन मैं कैसे दूंगा, आप 50 लेक्चर में कैसे ये इस चीज को ओवरकम करोगे, वो डिस्कशन कर रहे हैं, और उसके बाद फिर अपन एसएम का पॉइंट डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मेरे ख्याल से ये समझा। अच्छा, क्वेश्चन समझो, वापस क्वेश्चन रीड मारो, ओके, पहला वाला 3 लाइन छोड़ो, लास्ट वाली लाइन रीड मारो। सबसे पहले यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो अब मेरे को बताओ कॉन्सेप्ट ऑफ कस्टमर बिहेवियर में कितने पॉइंट है? 4, बताइए। 4, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इंटरनल इन्फ्लुएंस, डिसीजन मेकिंग, पोजिटिव, ये 4 इसको यूज करो, ये 4 को यूज करो, एंड क्या बोला, डेवलप क्या करो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यानी मेरा क्वेश्चन है बनाना क्या है, लेकिन किस बेसिस पे? वो 4 पॉइंट के बेसिस पे। एवरीबडी एग्री और नॉट? ठीक है, अगर ये एग्री हुआ तो अब मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं, एंड यू विल बी डिस्कसिंग वेयर द मार्केटिंग स्ट्रेटजी। लेट फोकस ऑन दिस। एक बार नाम बता रहा हूं बस, ओके। अगर आप देखोगे स्क्रीन पे, देखिए, ओवर द इयर्स नंबर ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैव बीन इवॉल्व, यानी यार मार्केटिंग स्ट्रेटजी ओवर ए ईयर इवॉल्व हुई है बहुत सारी, एंड विच हैज बीन गिवन टू हैंडल मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड फाइट द कंपटीशन इन मार्केट। अब जिसका एग्जांपल है कि भाई वन इज सोशल मार्केटिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल मार्केटिंग? ओके, ये मार्केटिंग आपने सबने बहुत सारी देखी होगी, मैं बोल रहा हूं नॉलेज, अपन डिस्कशन कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे है, और इसके बाद आप मेरे को बताओ आंसर क्या लिखोगे।
क्वेश्चन तुम्हारे सामने है. द डिस्कशन इज ओके सोशल मार्केटिंग. सोशल मार्केटिंग एक बेस्ट एग्जांपल, क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर द पीपल. अक्षय कुमार वाला कितनी उड़ा देता है. ओके उससे अच्छा याद है दूसरा एक और एक. ओके थिएटर में गए होंगे तो एक ऐड देखी होगी मुकेश. तीसरा एक ऐड देखा होगा जिसमें रोड नो एंट्री में पार्क करता है. क्या है तेरे पप्पा का रोड है क्या. ओके अक्षय कुमार की ऐड ही ऐसी. ये सब ऐड जो दी जा रही है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ये मार्केटिंग है. ये मार्केटिंग है, पर मार्केटिंग काय के लिए है? ये सोशल कॉज के लिए. सोशल कॉज, सोशल अवेयरनेस. तो इसको कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं अपन? सोशल मार्केटिंग. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. द सेकेंड मार्केटिंग कौन सी है या समझने की कोशिश करो. नाम चाहिए मेरे को कुछ एग्जाम्पल समझाना है, उसके बाद आप मेरे को आंसर बना के दो. दूसरी मार्केटिंग कौन सी? ऑगमेंटेड. ऑगमेंटेड एकदम अलग नाम है सर. क्या है? ऑफर दो. अब मेरे को बताओ क्या कॉमनली आप डीमार्ट से कभी शॉपिंग किया हो कि नहीं? अच्छा डीमार्ट सबको पता है. डीमार्ट का मेन स्ट्रैटेजी क्या है? सस्ता. वो सस्ता देता है. सस्ता कैसे करता है वो? डिस्काउंट देता है. दिस इज नथिंग बट विच मार्केटिंग? ऑगमेंटेड. ऑफर्स दो. ऑफर्स. अच्छा 1+1 देखा है कभी? एक खरीदो दूसरा फ्री. क्या तुमको लगता है फ्री में दे रहे क्या कोई? पर वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है ना. तो उसको कौन सी मार्केटिंग बोलते हैं? विच मार्केटिंग? ऑगमेंटेड मार्केटिंग. द सेकंड मार्केटिंग ऑगमेंटेड मार्केटिंग. थर्ड मार्केटिंग सुन ये प्रोडक्ट खरीद, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है. कौन सी मार्केटिंग? डायरेक्ट. डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब किससे मिलने का? कस्टमर से. मेरे को बताना पड़ेगा भाई मेरे को आंसर तैयार करने के लिए. डायरेक्ट मार्केटिंग कस्टमर से मिलो. रिलेशनशिप मार्केटिंग. रिलेशनशिप मार्केटिंग भाई साहब तू फाउंडेशन में था तब तेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन किया, उसके बाद इंटर में आया रिलेशनशिप मेंटेन किया, फाइनल में आया मेंटेन किया. ये रिलेशनशिप मार्केटिंग है जिसकी वजह से कस्टमर बार बार आता है. एक एग्जांपल मेरे को बताओ. व्हेन यू गो इनटू एनी मॉल और वगैरह मॉल या किसी भी जाते हो शॉपिंग के लिए, शर्ट परचेज करो या कुछ परचेज करते हो, क्या वो आपको बोलते हैं आपका नाम नंबर दो? क्यों लेते हैं? वो बोलते पॉइंट्स आएगा. कुछ सुना है? नहीं. अच्छा ये गए पॉइंट्स से क्या होता है? डिस्काउंट मिलता है. तो पॉइंट से डिस्काउंट मिलता है ना. तो डिस्काउंट मिलता है मतलब तुझे वापस तेरे को वापस बुलाया जा रहा है. तू डिस्काउंट देख रहा है लेकिन तू समझ नहीं रहा है जो चीज खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि डिस्काउंट पॉइंट खत्म होने वाले हैं, इसलिए तू जो अभी नहीं चाहिए फिर भी शॉपिंग करता. एंड सीरियसली बोल रहा हूं. मतलब अगर आप एग्री करो डिसएग्री करो बट आई एम टेलिंग यू दिस इज रियलिटी. आप जब डीमार्ट में जाते हो जो चीज नहीं चाहिए वो भी खरीदते हो. आप जब कभी मॉल में जाते हो जो चीज नहीं चाहिए खरीदते हो. इसीलिए कभी भी वो चीज में जाओ जिधर नीश एरिया है. नीश मतलब वही चीज चाहिए उधर ही जाओ. ये पॉइंट बहुत स्ट्रैटेजिकली पॉइंट है. और ये क्या है? रिलेशनशिप मार्केटिंग. ओके सर्विस मार्केटिंग ठीक है. मेरे को पर्सन मार्केटिंग. आपने बहुत ऐड में देखा होगा. अमिताभ बच्चन ऐड में आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं ऐड में, और अमिताभ बच्चन कुछ बोल रहे हैं पधारो हमारा देश. पधारो हमारा देश मतलब मध्य प्रदेश की ऐड कर रहे हो, राजस्थान की ऐड कर रहे हैं. यानी एग्जांपल वो प्रमोट क्या कर रहे हैं? टूरिज्म. अक्षय कुमार कोई ऐड में आ रहा है. अच्छा बेस्ट ऐड यार बोलो जुबा केसरी. कौन आया? अजय देवगन. अरे कॉमन है भाई. अरे जो अजय देवगन की जुबा केसरी ऐड नहीं देखा ना मां कसम लालच है सबसे. अरे भाई सबसे फेवरेट है वो. अपन प्रोडक्ट कंज्यूम करे ना करे लेकिन ऐड वैसे करेंगे. अब मेरे को बताओ ये मार्केटिंग कौन सी हुई? पर्सन मार्केटिंग. यानी मेरे को बताओ जो जुबा केसरी वाला जो ओनर है उसने किसके थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट किया? एक्टर. पर्सन. ही वांट्स कंज्यूमर शुड बी अट्रैक्टेड बेस्ड ऑन पर्सन. ओके दैट इज व्हाट कॉल ए पर्सन मार्केटिंग. ठीक है. बाकी और मार्केटिंग की बहुत टेक्निक है. अब आते हैं, मैंने आपको कुछ नाम दिए थे मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं. सोशल मार्केटिंग, ओके ऑगमेंटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग. नाम दिए थे ना. ये क्या थी? मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. और ये सिर्फ 12-13 है. मेरे को आज डिस्कशन नहीं करना है पर क्वेश्चन है अब इसका आंसर क्या लिखना बताओ. पर्सन मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हैं. ठीक है पर्सन मार्केटिंग को टारगेट कर सकते हैं. इसका आंसर कैसे लिखना है? अभी आप बोलोगे सर एक काम करते हैं इसका आंसर अपन सीधा यही आंसर लिखते हैं, यही मसाला लिखते हैं. मैं बोल रहा हूं अगला आइटम कंफर्म. ये आंसर है ही नहीं. ये कॉन्सेप्ट समझा है आपको पूरा? ये थियरी समझाइए कि ये होता क्या है. ये आंसर एक्सपेक्टेड ही नहीं आपसे. दिस इज वेयर आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन 5 इज 5. आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 ए बी सी. वो एबीसी है वो ये 2 चैप्टर को मिक्स करके बनाया और जिसका आंसर ही नहीं है.
और आप बोलोगे मतलब जैसे अभी एक आंसर आ गया पर्सनल मार्केटिंग, अभी किसी के दिमाग में सर एक काम करेंगे अपन यही मार्केटिंग के सारे पॉइंट्स लिख के आ जाएंगे, लेकिन आप कितना गलत हो, क्योंकि द क्वेश्चन इज क्लियरली आस्किंग यूजिंग कस्टमर बिहेवियर, यानी आपको वो आंसर भी यूज करना है। कौन सा वाला आंसर? चार पॉइंट, इंटरनल, एक्सटर्नल, डिसीजन मेकिंग, पोजीशन मेकिंग, और इधर के 12 पॉइंट, और इसकी खिचड़ी बना के अपना एक नया आंसर लाना है। वो ये ऐसा नहीं कि सर एक काम करेंगे 4 पॉइंट पहले लिखेंगे फिर नीचे 12 लिखेंगे, खत्म, ये एक आंसर के बाद कुछ नहीं लिखेगा तू, ऐसा है ही नहीं। सर फिर क्या लिखना होगा? इसमें पहला लिखना होगा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। सुन मेरी बात, क्या लिखा मैंने? क्योंकि बेस किसको लेने बोला इसने? बेस कस्टमर बिहेवियर को लेने बोला है। अब मेरे को बताओ, बेस कस्टमर बिहेवियर को लो, यानी इसके पॉइंट कितने होने चाहिए? इस आंसर के पॉइंट्स कितने होने चाहिए? 12 नहीं, ओनली 4, एंड यू इन दैट 4 यूज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मेरा पहला पॉइंट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब मेरे को बताओ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस में जो मैडम ने बोला कौन सा? पर्सन मार्केटिंग। एग्जांपल आज के डेट में मेरे को बताओ, चलिए शुरू करते हैं। कुछ चीजों मालूम है ऐसा टेक्निकल? गुरुजी अब मेरे को बताओ, कोई नया फोन आ रहा है, स्मार्टफोन आ रहा है, अभी सैमसंग लॉन्च हुआ, मालूम है, स्लिमेस्ट फोन करके। अगर इंस्टाग्राम पे कोई है, रहना नहीं चाहिए तुमने। ओके, अगले साल जब वो एग्जाम हो जाए उसके बाद इंस्टाग्राम पे रहो, जिस पे रहना रहो, लेकिन अभी हाल फिलहाल व्हेन यू आर इनटू एग्जामिनेशन प्रोसेस यू शुड अवॉइड। सर अभी तक एग्जामिनेशन प्रोसेस किधर है? अभी तो अपनी क्लास चल रही है, ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होते एग्जामिनेशन प्रोसेस है। ओके, इंस्टाग्राम पे आपने अगर नोट किया होगा, हर एक इन्फ्लुएंसर सैमसंग प्रमोट कर रहा था। सैमसंग, आप देखो हर जन वो सैमसंग के इवेंट में गया, वो इवेंट में बुलाया गया। आप देख लो मराठी एक्टर्स, हिंदी एक्टर्स, जो मैं बोल रहा हूं, ये अक्षय कुमार, अजय देवगन, इनको मत ढूंढो, ये बोलो जुबा केसरी उसमें बिजी है। तो सर ये कौन? ये इन्फ्लुएंसर, उनको मालूम है परचेज करने वाला किधर है। टेक्नो प्रोडक्ट परचेज करने वाला किधर होता है? टेक्नो परचेज करने वाला वो न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड नहीं देखता। ओके, वो किस में देखता है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब। ओके, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स, पर्सन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट करो, इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करो, ये प्रमोट करो। इंटरनल इन्फ्लुएंसर्स, ओके, मेरे को बताओ तेरा इंटरनल इन्फ्लुएंस कैसे होगा? एक तो रिलेशनशिप मार्केटिंग वाला कॉन्टेक्स्ट, मतलब एग्जांपल सही है। रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब कैसा होगा? ऐसा होगा, अगर कोई कस्टमर है जिसने मेरा प्रोडक्ट पहले ही परचेज किया होगा, एक उसको नया प्रोडक्ट के बारे में बताओ, उसको बताओ कि भाई ये प्रोडक्ट में फीचर्स ऐड ऑन है, एक्सचेंज बोनस। ओके, ये सारे फैक्टर्स आपके आएंगे। दूसरे इसमें तीसरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आएगी? डिसीजन मेकिंग, तो परचेस करने आया। अच्छा, एक पॉइंट मेरे को बताइए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ऐसा किसी के साथ हुआ रहेगा तो बताना, प्लीज डू एक्नॉलेज। ऐसा हुआ है आप कोई वेबसाइट पे गए शॉपिंग करने के लिए, फिर आपका माइंड बदल गया, आप छोड़ दिए, कार्ट में डाला। कार्ट मतलब समझा क्या? कार्ट मतलब कार्टिया नहीं, कार्टिया मराठी का कार्टिया है। कार्ट मतलब समझा क्या? कार्ट वो बॉक्स वाला, हाँ, वो कार्ट में तुमने 2 शर्ट डाल दिए, सपोज 2 ड्रेस डाल दिए, इसके बाद आप चेकआउट ही नहीं किए, आप कुछ नहीं किया और छोड़ दिए। क्या ऐसा कभी हुआ है व्हाट्सएप पे मैसेज आया है आपको उस कार्ड पे 5% एडिशनल डिस्काउंट? कभी हुआ है ऐसा किसी के साथ? आप ट्राई करने का, और कभी भी ऑनलाइन परचेज करो ये स्ट्रैटेजी यूज करने का, लेकिन ये स्ट्रैटेजी है ना 1-2 बार यूज होती है, उसके बाद उनको समझ में आता है कि तू यही कर रहा है। क्या करने का? कोई भी वेबसाइट पे गया, किस में डालने का? क्या? ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट में जब डालेगा तो तेरा नाम, एड्रेस, डिटेल उनके पास चला जाएगा, क्योंकि जब तुम डालते हो तो ऑलरेडी सिस्टम हैज आइडेंटिफाइड यू एंड डिटेल इज शेयर्ड विद प्रोवाइडर्स एंड दे अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट शॉप्ड। देन वो आपको कॉल करेंगे। ओके, अब यहां पर कॉल की जगह क्या आएगा? एसएमएस। और एसएमएस में क्या लिखा आएगा? ओके, गो फॉर एडिशनल 5% डिस्काउंट, 7% डिस्काउंट। यानी मां कसम तू जो कार्ड में पैसे देने वाला था 1000 रुपए, ओके, ऑल टुगेदर उसमें भी मतलब 70-80 रुपए या 100 रुपए तक कम हो सकते हैं। दैट्स व्हाट इज स्ट्रैटेजी अगेन। तो मेरे को बताओ ये क्या है? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं ना बड़ी। मेरे को बताओ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चल रहा था ना, तूने कार्ड में ऐड किया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चला, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कंप्लीट हुआ क्या? तो फिर कौन सी मार्केटिंग की मैंने? ये कौन सी मार्केटिंग? नहीं, ऑगमेंटेड फीचर्स दिए ना मैंने, ऑफर्स दिए ना आपको। नहीं समझा? तो तीसरा पॉइंट, मतलब मेरे को बताओ इसके आंसर की हेडिंग क्या क्या होनी चाहिए? पहला हेडिंग एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, और उसका मसाला इधर चैप्टर 2 का नहीं है,
ओके अगले चैप्टर का है और वो मसाला भी अपने को अपनी घर की खेती से लिखना है. ओके देन इफ यू आर थिंकिंग नहीं सर मैं वो पर्सनल मार्केटिंग का उधर का कंटेंट लिखूंगा, दैट इज नॉट करेक्ट. तो दिस इज व्हाट इज एग्जैक्टली क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 ये बड़ी जहां पर 2 चैप्टर 3 चैप्टर मिक्स हो सकते हैं एंड दे मे आस्क द क्वेश्चन ऑन वन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड इट मे नॉट हैव आंसर. यू नीड टू राइट द आंसर. मालूम है इसका एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज. डिसएडवांटेज है कि अपने को लर्निंग में आया ही नहीं, तो आपको लर्न करते वक्त स्ट्रैटेजी चेंज करनी होगी पढ़ते वक्त. एंड व्हाट इज एन एडवांटेज? ऑल 1 लाख स्टूडेंट्स हु विल बी गिविंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, सबके आंसर एक जैसे हो ही नहीं सकते. सर आंसर क्यों एक जैसा नहीं हो सकता? आंसर ही नहीं है वे. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके हाँ स्पेसिफिक आंसर ही नहीं है, तो एनीबडी राइटिंग द आंसर विल बी इवैल्यूएटेड सेपरेटली. These are not evaluated. Suggested answer तुम बोल रहे हो, suggested answer का एक अपना आंसर पैटर्न होगा, but everybody will be writing different formats. So who will get the marks? फिर किसका करेक्ट, कैसा करेक्ट, कैसे निकालेंगे? आपको यह समझना है. जब आप कॉन्सेप्चुअली करेक्ट करोगे, कॉन्सेप्चुअली कनेक्ट करोगे, कनेक्ट मतलब जैसे आपको समझा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में ये आएगा सर, इंटरनल इन्फ्लुएंस में ये लॉजिक बैठेगा. ओके दिस डिसीजन मेकिंग, दिस विल बी द लॉजिक. पोस्ट डिसीजन, दिस विल बी द लॉजिक. पोस्ट डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग. आई नीड टू एंश्योर कि डिसीजन ले लिया, तूने प्रोडक्ट परचेज कर लिया, छोड़ दूं और आई शुड बी कनेक्टेड विथ यू. कस्टमर सर्विस सपोर्ट. आगे आपने सुना है कभी कस्टमर सर्विस सपोर्ट? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही रे, फील नहीं आ रहा मेरे को. पक्का समझ में आया? तो कस्टमर सर्विस सपोर्ट चाहिए. अच्छा कस्टमर सर्विस सपोर्ट ही खाली करते रहूं या अगले कोई प्रोडक्ट के लिए भी तुझे प्रोवोक करूं? प्रोवोक करना चाहिए और होता भी है, तू देख. आई होप यू आर मेकिंग श्योर. क्या आवाज आ रही है ना सबको? कि मेरे को लगा आवाज आ रही कि नहीं आ रही है. ऑनलाइन पढ़ लगा आवाज आ रही है ना? बरोबर सही है, आ रही है. तो मेरे भाई और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, पंटर और पंटरियों, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट क्या है. तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया और क्वेश्चन की कहानी इधर खत्म नहीं हुई और कहीं से भी आपको ये समझना नहीं मैं डरा रहा हूं, मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको. आई एम हियर फॉर द सॉल्यूशन. दैट्स द ओनली टेक्निकल पॉइंट. व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज okay if you are thinking I'll be studying this book, okay all together मैंने ये पूरी बुक पढ़ ली, okay डन है, I will be able to solve everything. नहीं, इस बुक को पढ़ना नहीं है, इस बुक को पहले समझना है और समझने के बाद क्या करना है? फिर याद रखना है. वो याद रखने के लिए प्रोसेस कैसे करोगे? रिवीजन. कितने घंटे का रिवीजन है भाई? तुम्हारे साथ भी लास्ट डे के लेक्चर में 1 घंटे में पूरा एसएम खत्म करके दूंगा. ये 1 घंटा 1.5 घंटा भी नहीं लूंगा. 2:30 बजे चालू करेंगे, 3:30 तक तेरा पूरा एसएम खत्म करके दूंगा. ये गारंटी मेरी. पर वो गारंटी के लिए आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट बड़ी. ठीक है ओके. और एक छोटा सा एक क्वेश्चन बता देते हैं, एक क्वेश्चन का पॉइंट और एक देख लो और एक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लो. ये तो मैंने 2 चैप्टर कैसे मर्ज हो रहे हैं वो बता रहा हूं. दूसरा और एक क्वेश्चन मेरे को बताओ, क्या कोई भी बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है? बिजनेस क्या बेचता है? ओके मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट क्या है? ओके मेरा प्रोडक्ट क्या है? मेरा प्रोडक्ट एसएमई है ना बड़ी अभी. तो ये प्रोडक्ट क्या है? ओके सर्विस है, गुड्स है? सर्विस है. फोन बेचने वाले का प्रोडक्ट क्या है? गुड्स है. ओके किराने वाले का प्रोडक्ट क्या है? किराना वाला समझ रहा है, उसका प्रोडक्ट क्या होगा? गुड्स होगा. शॉप बार्बर की शॉप में पानी लेना, पानी. अच्छा इधर ये ठीक है. बार्बर की शॉप में क्या मिलेगा? सर्विस. सिनेमा में सर्विस. ओके तो आपको देखो प्रोडक्ट जब मैं बोल रहा हूं इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज. तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट. एवरीवन 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 गैदर द कॉन्सेप्ट हियर. जब भी प्रोडक्ट रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, वी हैव 2 थिंग्स इन दैट. वन इट कैन बी गुड्स, इट कैन बी आइदर इट इज गुड्स और सर्विस. इट डज हैव फीचर्स. इट डज हैव फीचर्स. फीचर्स होते हैं हर प्रोडक्ट एंड सर्विस के. फीचर्स होते हैं. प्रेम थोड़ा आवाज करना रे, मेरे को फील ही नहीं आ रहा है. मेरे को और चिल्ला रहा हूं मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. हाँ हेलो हेलो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है? हेलो 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 हेलो. ओके पहला पॉइंट गुड्स एंड सर्विसेज. इसके क्या होते हैं? फीचर्स. अच्छा गुड्स एंड सर्विस कौन सी कैटेगरी में डाला पहले मैंने? प्रोडक्ट. तो पहला पॉइंट, हर बिजनेस क्या बेचता है और प्रोडक्ट किस में डालोगे? गुड्स एंड सर्विस. गुड्स एंड सर्विसेज के क्या होते हैं? फीचर्स. फीचर्स होते हैं 5. हाउ मेनी फीचर्स आर देयर? 5. ओके पहला, प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल और कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? ये इजी है. टेंजिबल मींस
इंटेंजिबल मींस, अब इसका एग्जांपल क्या होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इंटेंजिबल। ओके, बेंच जो खरीदनी है तो टेंजिबल, मोबाइल खरीदना है तो टेंजिबल इंटेंजिबल का डिफरेंस समझा क्या बॉडी एवरीबॉडी। तो पहला फीचर ऑफ द प्रोडक्ट टेंजिबल इंटेंजिबल। ओके, एक सेकेंड सबकी आत्मा इधर आ। अरे चश्मा भयंकर लग गया बे। ठीक है, इसका वो मेरे ख्याल से वो चैप्टर वाला पॉइंट ही है, लेकिन पहला एक पॉइंट बता दो, प्रोडक्ट टेंजिबल इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब कौन सा वाला जो फिजिकल है, टेंजिबल। इंटेंजिबल कौन सा होता है, इंटेंजिबल कौन सा होता है बड़ी, जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं है। तो अगर मैं अभी जो सर्विस दे रहा हूं ये कौन सा है, इंटेंजिबल। ओके, मोबाइल खरीदना वगैरह ये कौन सा हुआ, टेंजिबल। ठीक है, क्या प्रोडक्ट फ्री में मिलता है या प्राइस में मिलता है, प्राइस में मिलता है। और प्राइस का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, प्राइस जो भी होगी कैसे डिटरमाइन की जाती है, कोई आइडिया। वैसे आज कॉस्टिंग में तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं रहेगा, ओके स्टार्टिंग डे है, ओके लेकिन कॉस्टिंग में मेरे को बताओ, कोई भी बंदा ओके जो प्रोडक्ट को बनाता है, प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज कुछ भी आएगा, वो गुड्स और सर्विसेज कुछ भी बनाता है, क्या उसका ओके कॉस्ट आता होगा उसको, कॉस्ट कैन बी मटेरियल, लेबर और एनीथिंग। क्या वो उसको प्रॉफिट मार्जिन करता है, प्रॉफिट मार्जिन डालने के बाद जो प्राइस निकली वो कौन सी सेलिंग प्राइस होगी, क्या हर प्रोडक्ट की प्राइस होती है। तो पहले कैसे प्राइस डिसाइड की जाती थी, पहले प्राइस कैसे डिसाइड की जाती थी, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया। आप बिजनेस चालू करोगे, मोबाइल बनाओगे, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग देखोगे कितना कॉस्ट आया, कॉस्ट के बाद मार्जिन ऐड करोगे और प्राइस होती थी। आज से 20 साल पहले, आज के डेट में प्राइस ऐसे नहीं होती है, प्राइस इज बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। ओके, ये प्रोडक्ट की प्राइस का कॉन्टेक्स्ट। इसके ऐसे 5 फीचर्स है, ओके पर पहला वाला फीचर जो है वो है आपका टेंजिबल इंटेंजिबल। और अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन पे देखोगे तो एक ऐसा कंपनी के बारे में बताया है, रीशफल कॉर्प इज ए कंपनी दैट मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफिस फर्नीचर। They offer a range of products from desk chairs to cabinets and shelves. Recently, company has been facing increased competition from online retailer, जो ये lower price पे दे रहा है। ठीक है, मतलब उनकी लग गई है इन शॉर्ट। आगे, analyzing the characteristics of product in which industry, furniture industry. Discuss how reshuffle can differentiate its products to maintain a competitive advantage. तो जब भी ऐसा लाइन आया, मैंने क्या बोला, बेस किसको बनाने का, पहला वाला या दूसरा वाला, पहला वाला जो आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया। तो इसका बेस क्या होगा, क्या लिखना है मुझे, कैरेक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। अब अगर इसमें आपने ऐसा लिख दिया, प्रोडक्ट डैश, प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल इंटेंजिबल, और आप लिखोगे टेंजिबल मींस व्हिच कैन बी टच, ओके इंटेंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी टच, ये आंसर है अपना मेन आंसर बुक का। अगर ये लिख दिया गया, इसमें आंसर इसके कनेक्शन में लिखना जरूरी है। यानी अपन क्या लिखेंगे, ये प्रोडक्ट कौन से बेच रहे हैं, ये कंपनी कौन से प्रोडक्ट बेच रही है, मेरे को बताओ। टेंजिबल बेच रही है, इंटेंजिबल कुछ बेच रही है क्या, जो दिख नहीं रहा है वो है। सर इंटेंजिबल क्या होगा, इंटेंजिबल क्या होगा, अरे इंटेंजिबल है सर, क्या होगा, अरे आफ्टर सर्विस सपोर्ट। अरे आपने टेबल परचेस कर लिया, उसके बाद अगर कुछ इशू आया, क्या मैं वो सपोर्ट देना चाहिए, अरे तो ही तो मैं बिजनेस अच्छा कर पाऊंगा। The answer which is not written in book, you need to write, and this is the concept where only one chapter case study comes. मैंने आपको ये 2 पार्ट में मैंने क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया
क्वेश्चन 5 कैसा हो सकता है और 6 और 7 कैसा हो सकता है। 8th वाला मैंने क्या बताया कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। तो 8th वाले के लिए आपके पास एफर्ट्स क्या होने चाहिए, 8th वाला अगर लिखना रहा तो एफर्ट्स क्या होने चाहिए, रटोफाई, बात खत्म। अगर आपने एसएम को रट लिया, 8th वाला 10 मार्क का क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट सॉल्व है, लेकिन इट इज ओनली हाउ मच मार्क्स। बट अगर वही रटने की कैपेसिटी मैंने इधर लगा दी एंड आई मे एंड अप राइटिंग द सेम आंसर व्हिच आई हैव रटोफाइड, यू आर इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। आई एम नॉट सेइंग 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज बेस्ट पार्ट क्या है एसएम में, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, सबसे बेस्ट मतलब बहुत बेस्ट पार्ट है। ओके, एसएम में एक क्वेश्चन जो 5 मार्क का है, वो 5 मार्क आपको क्यों मिलेगा वो भी लिखा होगा। यानी एवरी क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू, जितने क्वेश्चन होंगे उसके मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ये 1 मार्क, ये 3 मार्क, ये 2 मार्क, इस तरह से डिवीजन होगा। यानी एग्जांपल, अगर एक क्वेश्चन बैंक को देखो, ओके ये देखो, अब ये क्वेश्चन 8, ये कितना मार्क दिख रहा है डायरेक्टली, 8 5 मार्क दिख रहे हैं, क्वेश्चन 8 है। ओके, ये बी का और है, राइट, शॉर्ट नोट वगैरह वगैरह ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेकिन अगर मैं इसमें देखता हूं, पहले वाले इसमें क्वेश्चन देखो कैसा है। ओके, ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है, वो डायरेक्टली आप लिख ही नहीं पाओगे, लेकिन इसका कैसे मार्किंग स्कीम कैसी है समझ में आई क्या, 3 + 2, इसका मतलब अगर इसमें आपने आधा आंसर भी सही लिखा तो 0 नहीं मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो अपने को बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है क्या, इवन इफ यू आर एबल टू राइट द कंटेंट, एटलीस्ट पार्ट ऑफ द मार्क्स इज वेरी इजी। बट वन ऑफ द चैलेंज वापस वही आता है कि अपने को लिखना क्या है। और इसका सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप मेरी May 24 वगैरह ये बैच में, मैं बोलता हूं जब मैंने स्टार्ट किया वापस न्यू सिलेबस में एसएम, ओल्ड सिलेबस में एसएम था, ओल्ड सिलेबस में जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पेपर था 2023 तक, इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन आओ, रटिफाई करो, एंड अप राइटिंग। तो इट वाज डायरेक्टली, ओके, देयर वाज ए थियरी बुक, एक थियरी बुक मैं आपको देता था, ओके, क्वेश्चन बैंक की बुक थी, थियरी अपन क्लास में डिस्कस करते थे, मैं आपको बोलता था अभी पढ़ लो, और फिर अपन थियरी पढ़ते थे, साथ में पढ़ने का, और उसके बाद घर पे जाके पढ़ने का, सेम थियरी पढ़ने का, एंड वंस दैट इज डन फिर क्वेश्चन बैंक को यूज करते थे। बट द September 24 पेपर हैज चेंज्ड स्ट्रेटजी, एंड उसकी वजह से, ओके, फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स द बैच या बुक का कॉन्टेक्स्ट आई चेंज एंड इट इज मेड एज ए नो नोटबुक कॉन्सेप्ट। तो आपके पास सबसे पहले एक वॉल्यूम 1 आएगी, बुक्स कौन सी आएगी, और मैं सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड कर रहा हूं वो सुनो। ये जो अपन हैंडल कर रहे हैं 50 मार्क्स, मैं इंश्योर मैं बोल रहा हूं, अगर आपने मेरे को ये जो 60 आवर्स कंटेंट के आपने सही दिए, और उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक आप टाइम बरोबर दे रहे हो, और उसके बाद मैं सिर्फ आपको कनेक्ट रहने बोलूंगा, जो मे वाले हैं, जो जैन वाले, उनके लिए दिक्कत नहीं आएगी ज्यादा, क्योंकि एग्जाम खत्म हुई, मतलब बैच खत्म होगा, उसके बाद आप पढ़ाई पे लगने ही वाले हो। लेकिन जैन वाले को, मे वालों का क्या होने वाला है, ग्रुप 2 खत्म होगा, क्या चालू होगा, ग्रुप 1, ओके, फिर वापस गैप आएगा, उसमें कनेक्ट रहना जरूरी होगा, नहीं तो फिर क्या आएगा, वापस 3 महीने के बाद जब ग्रुप 1 होगा, वापस अपनी पोजीशन होगी, मां कसम क्या है सिम, तो अपने को कनेक्ट, दैट्स ए कंडीशन, एंड ये आप ऐसा सोच रहे होंगे सर कि हमारे साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं, सबके साथ होगा। जिसने ग्रुप 1 अभी किया है, अभी ग्रुप 2 में है, उसके लिए 2 महीने के बाद कौन सा प्रॉब्लम आएगा, ग्रुप 1 का सेम पोजीशनिंग है। और अभी देखो नया बहुत मोटिवेशन रहता है सबके लिए, मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट इज अबाउट डिटर्मिनेशन। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और जितना जल्दी आप इंटर निकालोगे उतना जल्दी आप सीए फाइनल दे पाओगे, आप ये समझो, और जितना जल्दी सीए फाइनल दे पाओगे उतना जल्द से जल्द आपका 6 लाख का पैकेज चालू हो जाएगा। मैं कम से कम की बात कर रहा हूं, मैं बेसिक मतलब चुमू, मतलब एकदम चुमू निकला, और मैं निकला किधर नहीं गया रे, 5 से 6 लाख ऐसे ही निकल जाता। आप बोलोगे सर नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे जिनको जॉब नहीं है, वो एक्सपर्टाइज वाले लोग, नहीं मेरे को तो काम करना है, तो इसी एरिया में काम करना है, नहीं तो दूसरा नहीं करना है, ऐसा लेके बैठे हो तो आपको नीश कर रहे हो ना। जनरल में घुसो, एक बार सीए बन गया, जॉब पकड़ो, जो मिले वो मिले, पहला पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अपना टारगेट। अच्छा मेरे को बताओ, इधर कोई एनजीओ खोलने वाला है सीए बन के? नहीं सर, सेक्शन 8 कंपनी सर। ओके, नहीं सर, मैं सीए बनूंगा और सेक्शन 8 खोलूंगा, ऐसा कोई है क्या? नहीं भाई। ओके, और ये समाज सेवा करनी है तो सीए बनने की जरूरत ही नहीं है भाई, बिना उसके भी हो सकता है। तो सीए बनने के बाद एक ही वो टारगेट है, तो आप जितना इस चीज को डिले करोगे आपका आगे वो डिले होता जाएगा, ये ध्यान रखिए। So before going on anything, let's me first contextually introduce the first book, that is your volume 1, which is basically a no notebook concept. अब ये no notebook concept होता क्या है, प्रैक्टिकल में तो समझ में आया था, ओके, थियरी में कैसे होता है? थियरी में आपको बुक कुछ इस तरह से दिखेगी जो आपके पास होगी, ओके, जो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट होगा, जहां पर जो कॉन्सेप्ट पूरे के पूरे लिखने, जो कुछ रटने वाला कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज रहेगा, जो अपन रखेंगे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट ओके आपको ब्लैंक मिलेंगे।
अब इस ब्लैंक में आपके जो मॉड्यूल में आंसर है अपन एज इट इज लिखने वाले क्या? नहीं, पूरी तरह नहीं। अरे वही लिख दिया तो फिर तो मेरे को बता, फिर मॉड्यूल ही देने में क्या दिक्कत है फिर? तो अपन क्या कर रहे हैं, मैं आंसर मॉड्यूल का बेस रखेंगे। बेस किसका होगा? अभी आपको मैंने मॉड्यूल का समझाया, कितने इन्फ्लुएंसेस? 4 एक्सटर्नल इंटरनल, ये समझ में आया। उसका जो कंटेंट है वो तो रखेंगे ना। डायरेक्ट क्वेश्चन में आ गया तो, डायरेक्ट क्वेश्चन में आया तो लिखना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन अगर वो डायरेक्ट नहीं आया, जैसे अभी इंटीग्रेट हो गया आया, या किसी और के साथ भी इंटीग्रेट हो सकता है, एक ही तो सैंपल दिखाया तुमने, तो उसको कैसे करेंगे? तो एग्जांपल, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया जिधर जिधर है उधर अपन इंटीग्रेट करके उसके बाजू में भी ये नोट रखेंगे कि भाई ये कौन से चैप्टर के साथ कब कब इंटीग्रेट होगा, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं एक ऑथर्स नोट। ऑथर्स नोट मतलब मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, वो नोट ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में ये ट्विस्ट आया, ये मसाला चेंज, और ये मसाला जो चेंज होगा वो भी अपन नोट करेंगे, क्योंकि अरे वही तो मेन एजेंडा है, नहीं तो नो नोटबुक कॉन्सेप्ट निकाले ही क्यों? तो अपने को ये समझना जरूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन में आंसर कितने बनेंगे? एक बनेगा या दो बनेंगे? एक बनेगा। अरे एक आंसर कौन सा होगा? कौन सा वाला? जो मॉड्यूल का है। ये समझ में आया? ये कब लिखना होगा? डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 8। अगर वो क्वेश्चन 8 में मिला, जो आंसर लिखना हो तो पहला सेट होगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रेट हुआ तो आंसर वो लिखना है क्या? नहीं, आंसर को कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करना पड़ेगा, उसका एक नोट रहेगा, नोट के अंदर कीवर्ड्स रखूंगा और कीवर्ड से अपने को वो मैच करना पड़ेगा। ये स्किल सेट अपने को बनानी है। तो नेक्स्ट आप जो मेरे साथ 50 इसमें डालने वाले हो, आपकी स्किल सेट क्या बननी है? आपकी स्किल सेट, पहली स्किल सेट होगी, जब जब अपन नोट लिखेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा, नोट में 2 आंसर बनने वाले हैं। पहला आंसर जो अपने को याद रखना रहेगा, और दूसरा आंसर क्वेश्चन के बेस पे चेंज। तो पहला सेट ये नो नोटबुक कॉन्सेप्ट है। टोटल चैप्टर्स आपके कम है, 5 चैप्टर्स है, कोई टेंशन नहीं है। 5वां सेट चैप्टर एक अपने आप में ब्लंडर है। ब्लंडर मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 5। टोटल 5 चैप्टर्स आर देयर। ये 5 चैप्टर इंटीग्रेशन कोई भी किसी में भी हो सकता है। और सर ये इंटीग्रेशन हो कैसे सकता है? ये कौन करने वाला, कौन है इंटीग्रेशन? अपनी, मतलब मैं नहीं, अपनी कौन? आईसी है इंटीग्रेशन करने वाले। और वो आईसी किससे करवा रही है इंटीग्रेशन? चैट जीपीटी। आप जितना अच्छे से ये समझोगे उतना अच्छे से प्रैक्टिकली तैयार हो पाओगे। तो पहली बुक, ओके, सारे जन को याद रखना है, ये पहली बुक होगी, ये होगी आपकी रोज कैरी करने वाली बुक, जो होगी आपकी वॉल्यूम 1। जो कौन सी बुक होगी? नो नोटबुक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर अपन थियरी लिखने वाले हैं। और 2 कलर के पेन लगेंगे, एक होगा रेड, एक होगा ब्लू। रेड और ब्लू का कॉन्टेक्स्ट रहेगा। रेड मैक्सिमम टाइम अपने को लगने वाला है, क्योंकि आपका मैक्सिमम कंटेंट उसी बेस पे रहेगा। और ब्लू का कॉन्टेक्स्ट जब जब मेरे को लगेगा भाई ये क्वेश्चन लीस्ट इंपॉर्टेंट है यार, रटने वाला ही पॉइंट है, ज्यादा हेडेक मत करना, वो पॉइंट पे मैं ब्लू रखूंगा। तो मैक्सिमम टाइम अपन क्या लिखेंगे? रेड। हाँ, एग्जामिनेशन में आपको ये दोनों यूज नहीं करने, समझ रहे हैं? ओके। और अगर एग्जामिनेशन में ऐसा लग रहा है नहीं सर यार अपन ने एक रेड और ब्लू मैंने यूज कर लिए सर, ओके, एग्जांपल ऐसा, ये पेन दो मैडम, ऐसा अपने माइंडसेट में होता है ना, तो 2 पेन यूज करते हैं, रेड और ब्लू। और एक है क्या पेन? किसी बात दो, मेरे को एक पेन दो। ऐसे ये समझ लो, ये रेड है, ये रेड है, ये ब्लू है। और ऐसे हैबिट रोज की होगी ना, तो रोज होने के बाद हैबिट तो अपनी एग्जामिनेशन तक भी वही जाती है। तो सर अगर एग्जामिनेशन तक भी ऐसी हैबिट रही और फिर अगर ब्लैक में शिफ्ट हुए तो अच्छा नहीं लगा, फीलिंग नहीं आया लिखते लिखते, क्योंकि क्लास में तो अपन हरियाली गार्डन बना रहे थे पूरा, ओके, गार्डन बना रहे थे सर। फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ऐसा कुछ रहा तो कुछ नहीं करने का। एग्जामिनेशन में भी कलरफुल पेन लेके जाने का, अंदर रिफिल ब्लैक डाल देने की, सिंपल आंसर है। तो अगर अपनी मेथोलॉजी चेंज नहीं करना चाहते, जो कस्टमाइज नहीं होना चाहते, जो मतलब दोज हु आर एक्सपेक्टिंग भाई हम वैसे ही रहेंगे जैसे, तो खाली क्या करो, बस दैट्स द सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हर चीज का होता है, बस सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो मेथोलॉजी के लिए कॉन्टेक्स्ट इधर, सॉरी चेंज हो गया। तो भाई साहब 2 पेन कलर के लगेंगे जिसमें मेरे को लिखने का कंटेंट होगा, ये पहला चीज। आई होप ये पहला पॉइंट क्लियर बड़ी, ओके। सर क्या ये बुक पूरा मेरे को याद रखना पड़ेगा? मेरे भाई मैं तेरे को एक चीज सबसे पहले समझा रहा हूं, इस बुक को तू कॉस्टिंग के बाजू में रख, कॉन्फिडेंस डबल ट्रिपल हो जाएगा। इस बुक को तू एफएम के बाजू में रख और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। और तू इस बुक को ऑडिट के बाजू में भी रख, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब इसको तू पूछ रहा है ये पूरा करना पड़ेगा क्या? तेरा सवाल गलत है, पहले विनोद सर से पूछना चाहिए, क्या सर ये बुक पूरी करनी पड़ेगी क्या? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अरे यार तुम इतनी पतली बुक है, इतना कंटेंट है, इतना छोटा सा पॉइंट है यार, ले देखे कितना है यार, 200 पेजेस है यार, 200-250 पेजेस की पूरे मॉड्यूल है यार। 250 पेजेस में मतलब तुम उसमें और क्या कम करोगे यार? और उसमें कम करोगे सर, उसका कम दे रहा हूं ना, 10 पेज में चार्ट है,
आपको एफएम के मतलब एफएम एसएम का चार्ट बुक साथ में आएगा, जिससे मतलब जो आपको मिल जाएगा। एफएम एसएम की पूरी चार्ट बुक है, जिसमें एसएम कितने पेजेस में? 10 पेजेस एसएम खत्म पूरा। एक आध दो पॉइंट अपने को रेक्टिफाई करना पड़ सकता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, वो एक मिस आउट पॉइंट पे अपन वो करते हैं, एडिशनल चीज लिखते हैं। अभी जैसे अभी अपने को समझा तो अभी सितंबर पेपर आया, कुछ और एडिशनल कंटेंट आया, अपन वो अपडेट करेंगे तो वो पॉइंट रहेगा। लेकिन 10 पेज में पूरा एसएम खत्म, तो सर इतना पढ़ू क्या? यस, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, पर ये पहला बेस है जो रोज चाहिए। सर ये तो हो गया, चलो चलो चलो, डन सर, डन सर, आई एम ओके, आई अंडरस्टूड थियरी कैसे है। मतलब अपन थियरी ऐसे करने वाले हैं, मैक्सिमम लिखने वाले हैं, कुछ चीजें जो डायरेक्ट वाली थियरी होगी वो अपन पढ़ने वाले हैं, ओके, जो बुक में है, और उसको हाईलाइट करके अपन दिखेंगे क्या करना है। आई होप इधर तक क्लियर। सर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितनी बुक मिलेगी आपको? 2, एक है वॉल्यूम 2, एक है वॉल्यूम 1 के, मां कसम। ओके, क्वेश्चन बैंक कितनी रहेगी? 2, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 2 जो आपकी ये वॉल्यूम कौन सा है? हाँ, वॉल्यूम 2, ये वॉल्यूम 2 है। ओके, ये वॉल्यूम 2 इज बेसिकली अ पूरा कंपाइलर ऑफ योर मॉड्यूल। जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें अंदर है। इसके अलावा और इंटीग्रेटेड केस स्टडी चैट जीपीटी से बनाया है, वो भी घुसेड़ दिए। समझना? ये इनफ, मतलब मोर देन इनफ हो गया फॉर अंडरस्टैंडिंग ए प्रैक्टिसिंग पॉइंट। इसके अलावा वॉल्यूम 3 है, ये है आपकी कंपाइलर। सर कंपाइलर मतलब मई 24 से लेकर अभी तक एमटीपी 1 2 3 जितने भी मतलब मई में 1 2 3 थे, ओके, फिर मई के पेपर, फिर आरटीपीज, ये सारा का सारा कंपाइल करके चैप्टर वाइज कंपाइलर आपके पास रेडी है। ये सारा का सारा है। अप्रोच, अप्रोच इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। और इसके साथ और एक कौन सी बुक है? चार्ट बुक, ओके। चार्ट बुक वाली पॉइंट आपको ऑलरेडी एफएम और एसएम के साथ में मिलेगी चार्ट बुक, ओके। अब टेक्निकली सुनिए, प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये बुक अपन रोज लेके आएंगे, ये बुक रोज कैरी करनी है, इन दोनों को घर में ही रखना है, मतलब ये दोनों काम का अभी हाल फिलहाल। तो कब आएगा सर? चैप्टर जिस दिन खत्म हो जाएगा उसके अगले दिन उस चैप्टर का रिवीजन होगा, जो चार्ट लगेगा, और अगले दिन फिर अपन ये दोनों बुक में से पहले वॉल्यूम 2 खत्म करेंगे, फिर वॉल्यूम 3 कंपाइलर, ओके। बट इट में हैपन दैट, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन बताया, अभी एग्जांपल मैंने चैप्टर 3 खत्म किया, सपोज चैप्टर 3 पहले खत्म किया, चैप्टर 2 बाद में करने वाला हूं। एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है दोनों चैप्टर का लिंकेज है, तो वो क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर ब्रेक देंगे, वो स्किप करेंगे उस टाइम पे, और वो जैसे ही दूसरा चैप्टर होगा उसके टाइम पे वो क्लोज करेंगे। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर बड़ी। तो ठीक है, तो पहला अप्रोच आप प्लीज क्लियर रखिए माइंड सेट में, कि अगर आपके दिमाग में अभी भी ऐसा है कि सर मेरे को ऐसा चाहिए कि आप बता दो कौन से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, कैसे कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, मैं उतना याद रख लूंगा और लिख लूंगा। आई डू थिंक दिस बैच इज नॉट सुटेबल देन, बिकॉज अगर इतना ही अच्छा होता तो मैं कसम, मैं तो समझ रहा है ना, मैं हर घर पे जाता था, हर घर पे बोलता था पेपर लीक हो गया मेरे पास है। समझ में कुछ आया? तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिए। दूसरी चीज, सर फिर आप क्या करवाने वाले हो, आप क्या करने वाले हो, ये मेरे को आपके साथ 60-70 घंटे डालूंगा, वो क्या मेरे को क्या हासिल होगा? तेरे को है ना, ओके, शिकार करना हासिल होगा। शिकार कैसे करना वो मैं तेरे को ट्रेन कर दूंगा, मेरी गारंटी, मां कसम बोल रहा हूं मैं। अगर रटा है नहीं तो नाम बदल देना बस, बस। पर रटा मतलब ऐसा नहीं है तू घर पे जाके सोएगा, इधर सोएगा और रटा दो। तेरे को इंटरैक्ट करना पड़ेगा। आज का तो सेशन अपना डिस्कशन पे है, पर आपको कल से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप जितना इन्वॉल्व होगे, आप जितना अंडरस्टैंड करोगे, वो कॉन्सेप्ट होगा तो सब याद आएगा, सब कॉन्सेप्चुअली समझेगा। पर पॉइंट ये है, एप्लीकेशन के लिए आपको क्लास बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, और याद रखने के लिए लास्ट डे पूरा एसएम मेरे को याद आ जाए। मेरे को अकेले को 1 घंटे में नहीं बोलना है, तुम मेरे साथ 1 घंटे में बोलोगे, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ऐसे होता है। अच्छा, अब प्रोडक्ट के फीचर बताओ। पहला फीचर टैंजिबल, ये आप बोलते हो, मैं नहीं बोलता हूं। रिवीजन ऐसे होता है मेरा रिवीजन ऐसे नहीं होता, मैं बोलता प्रोडक्ट के फीचर टेंजिबल इंटेंजिबल, ऐसा नहीं होएगा। मेरा क्वेश्चन आंसर लेने का तरीका ऐसा है, ओके। मेरा रिवीजन का ऐसा है, तो जिसके अंदर रिवीजन कौन कर रहा है 1 घंटे में, तो तुम्हारा रिवीजन अगर उतना करना है तो आप इमेजिन करो, अगर एक सब्जेक्ट तुम्हारे 8 सब्जेक्ट में से अगर एक सब्जेक्ट तुम ऐसे पार कर रहे हो, और सेकेंडली ये सब्जेक्ट मैंने बताया भी क्वेश्चन कैसे है, मैंने अभी तक पेपर में घुसा भी नहीं हुआ, पेपर में घुस गया तो तुमको मालूम पड़ेगा क्या चलेगा। पेपर में अभी एंटर सर क्यों नहीं किया है, प्रॉब्लम एक ही है, मेरे पास 1.5 घंटा है। मेरे को अगर यही एक आधा घंटा एक्स्ट्रा दे दो, मां कसम मैं हर क्वेश्चन दिखा दूं और टाइम देख लेंगे, बट इट इज ए चैलेंजिंग टास्क राइट नाउ। तो अपन, बट आई होप यू अंडरस्टूड इन लास्ट हाफ एन आवर के क्वेश्चन कैसे है। क्वेश्चन में अब देखो कितने लाइन का क्वेश्चन था, वो 4 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन आंसर था क्या उसके बुक में? प्रॉब्लम ये है, वो बनाने के लिए स्किल सेट जो जरूरी है वो देखेंगे बड़ी, ओके। तो टेक्निकली आई होप माय फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर फॉर एवरीवन। आवर ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न। आई नो
Learning is a process, I know, but main objective is to understand how to approach the question paper, how to approach or what should be your approach towards writing the answer. तो क्वेश्चन पेपर का अप्रोच अपने को ध्यान रखना होगा. पेपर का नाम एसएम. कोई बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी, यस यस, प्लानिंग. वाह वाह वाह, एक वर्ड आया प्लानिंग. अब मेरा क्वेश्चन है, प्लान और स्ट्रैटेजी सेम है? अच्छा, तो फिर नहीं, मतलब पहले तुम आंसर दे रहे हो, मैं बोला स्ट्रैटेजी मतलब क्या? प्लानिंग. फिर मैं पूछा स्ट्रैटेजी और प्लान सेम है क्या? नहीं. मतलब आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट. मतलब यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योरसेल्फ. स्ट्रैटेजी एंड प्लान इज नॉट सेम. स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट, प्लान इज डिफरेंट. हाँ, ट्रेडिशनली व्हेन स्ट्रैटेजी वर्ड वाज नॉट यूज्ड, okay, कान खुले, traditionally when strategy word were not used, that time the strategy word was resembling with planning. तो आज से 50 साल पहले हम लोग स्ट्रैटेजी नहीं बोलते थे, हम क्या बोलते थे? प्लानिंग करना है. तो कोई बताएगा स्ट्रैटेजी क्या है? और कुछ? प्लानिंग छोड़ो, प्लानिंग नहीं, प्लानिंग नहीं है. ओके सर, बट इंटीग्रेटेड तो पूरा सॉल्व होने के बाद ही करवाओगे ना? यस बड़ी क्लियर कट है. अबे इंटीग्रेटेड केस स्टडी मतलब मैंने कौन से वॉल्यूम में बताया था? याद नहीं हुआ तो वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 2 देखोगे तो 6 पार्ट है. ये छठा पार्ट केस सिनारियो जो अपन पूरे सिलेबस खत्म होने के बाद देखेंगे. ये बड़े बड़े एक एक पेज के क्वेश्चन है, एक एक पेज के क्वेश्चन है वो. ओके, 10 ऑड क्वेश्चन है, 10 ऑड क्वेश्चन है, एक एक पेज के. हाँ, एक एक पेज. तो वो लास्ट में मतलब वो चैप्टर के बाद कैसे करेंगे? 6 चैप्टर नहीं है अपने सिलेबस में. अपने सिलेबस में कितने चैप्टर बड़ी? आज थोड़ी बड़ी, ये तो लर्न का. तो मेरा क्वेश्चन, एक जन ने बोला सर प्लानिंग, प्लानिंग नहीं है बड़ी. ओके, द वे वी प्लान, मतलब सर प्लान नहीं है, द वे वी प्लान. एनी अदर स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स टू बी इंट्रोड्यूस इन प्लानिंग. मेरे को समझ में नहीं रहा प्लानिंग से क्या प्रॉब्लम है तुमको? प्लानिंग का पीछा ही नहीं छोड़ रहे. मतलब ये प्लानिंग, टेक्निक्स टू इंट्रोड्यूस प्लानिंग. अच्छा मेरे को ये बताओ, स्ट्रैटेजी पहले आएगी या प्लान पहले आएगा? जहर बॉटल में ना जहर डालू, मां कसम, क्या स्ट्रैटेजी पहले आएगा या प्लान पहले आएगा? अच्छा मेरे को बताओ, आपने क्लास ज्वाइन किया, ये क्या है? सर पता नहीं, क्लास है सर. क्लास तो प्लान है, क्लास ज्वाइन करना प्लान है, स्ट्रैटेजी है. खुद से भी तो पढ़ सकते हो, खुद से भी तो पढ़ सकते हो. खुद से क्यों नहीं पढ़ रहे हो? सब मजा नहीं आएगा. तो क्या तुम मेरे को मजा है क्या? मैं ठुमक ठुमक कर रहा है क्या? मजा नहीं आएगा. खुद से पढ़ने में आपको जो समझा होगा लास्ट 40 मिनट्स में, वो अपने को खुद से नहीं समझेगा. आप बोलोगे नहीं नहीं सर समझ लेंगे, हम लोग वॉल्यूम 2 आपकी खरीद लेंगे, देख लेंगे, उसके अंदर और क्वेश्चन देख लेंगे. अरे वो क्वेश्चन वैसे ही समझ आता तो फिर मैं पढ़ाने में टाइम पास थोड़ा ना करता. वो तो एक क्वेश्चन हो गया. और मैंने क्या बोला आपको? यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्या? मैंने पहला लाइन क्या बोला मेरे को बताओ स्टार्ट करते वक्त? मैंने क्या बोला? हर पेपर नया होगा. अरे अगर इतना ही कॉमन होता, अरे भाई मैं तुमको बता रहा हूं, इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पहले की बुकलेट बाहर नहीं देती थी. इंस्टीट्यूट बाहर बुकलेट मालूम है क्या? ये 2-1.5 साल पहले का देखो आप, बुकलेट बाहर नहीं आती थी. क्यों नहीं आती थी? रिपीट हो सकते थे. अभी बिंदास लेके जा लेके जा लेके जा. क्यों? अगला वाला नया आने वाला है, मालूम है हमको. वो बोले ले ले, हमारे पास है एक बच्चा चैट जीपीटी. ICI के लिए तो बच्चा ही है ना. तो आपने क्लास ज्वाइन किया, ये क्या है? स्ट्रैटेजी. क्लास ज्वाइन किया ना, स्ट्रैटेजी. घर से पढ़ना इज स्ट्रैटेजी, नहीं प्लान. घर से पढ़ना इज प्लान. घर से पढ़ना, देखो मेरे पास ऑप्शन था. मेरे को ऑप्शन क्या था? क्लास भी ज्वाइन कर सकता हूं, घर से भी पढ़ सकता हूं. ये क्या हुई? स्ट्रैटेजी. ठीक है, अब आपने क्लास ज्वाइन किया और आपको मैंने अभी बताया कि 50 दिन अपन मिलने वाले हैं, दोपहर को 2:30 से लेकर 4 बजे तक मिलने वाले हैं. ये क्या है? ये प्लान है. Strategy and plan both are different. We are discussing about strategies. We don't integrate into plan. Plan is the next step, next stage actually. Step भी नहीं, stage है वो अगला. Planning का अगला stage है. अच्छा बाहुबली देखिए सबने? सुना है क्या बाहुबली? अगस्त में बाहुबली द इपिक आने वाला है, मालूम है ना? अच्छा बाहुबली सुनी है क्या सबने? अच्छा किसी ने नहीं सुनी है? मिलो पर्सनली. मां कसम बाहुबली. अरे भाई बाहुबली इमोशन है अपना अलग से. अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं शिव गामिनी देवी की सौगंध खाता हूं, मालूम है ना? ऐसा कुछ है. ओके दैट्स द पॉइंट. तो बाहुबली 1 थी. ओके फिर द बिगिनिंग.
और बाहुबली 2, ओके कंक्लूजन, कटप्पा ने क्यों मारा, वो उसका आंसर था, याद है ना। अभी आ रही है द बाहुबली इपिक, ओके ये अभी अनाउंस की थी, 10 साल हुए बाहुबली को, उसमें अनाउंस हुआ है इपिक, उनके क्या नाम है उनका, राज मौली, SS राज मौली अनाउंस किया। फिर मेरे को भी ऐसे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मां कसम, मैं बोला मस्त, मतलब खतरनाक। अभी मेरे को लग रहा बाहुबली का बेटा और एक आ गया, पहले महेंद्र था, नहीं अमरेंद्र था, अमरेंद्र का बेटा महेंद्र, महेंद्र का और एक बेटा आ गया नरेंद्र, नरेंद्र बाहुबली, ओके नहीं आई थॉट लाइक दैट, मैं बोला और कुछ होगा, फिर मैंने पूरा एनालिसिस किया और मैं देखा क्या है मालूम है, द इपिक, दोनों बाहुबली का मर्ज और दोनों एक साथ में, 5.5 घंटे की पिक्चर, ओके अगस्त में रिलीज होने वाली है। मतलब कुछ, अरे वो दोनों एक साथ में देखो, वो दोनों आपने अलग अलग देखी थी ना, तो तुमको याद नहीं था पहले वो कौन था, ऐसा एक मालूम है, एक बाहुबली 1 में था, आई होप याद है, और बाहुबली 2 में वो समझा ही नहीं कौन है। तो भाई SS राजमौली ने बोला ये दोनों को क्या करो, साथ में देखो, मर्ज करके देखो, 5.5 घंटे एक साथ में, 5.5 घंटे एक साथ में, मतलब 5.5 घंटे की रिलीज हो रही है थिएटर में, बाहुबली इपिक, इपिक बोला जा रहा है उसको, ये भी एक स्ट्रैटेजी है एक्चुअली, ओके दिस इज स्ट्रैटेजी, नथिंग मोर देन दैट, इट इज नथिंग डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से आ रहा था, बाहुबली 1 अगर आपने देखी होगी, तो बाहुबली 1 में मैंने जो अभी एक बताया, मैंने कहा वो एक मालूम है आपको, स्टार्टिंग में मतलब सेकंड हाफ में जब लड़ाई हो रही थी, तो ये बंदा कौन था, कालिके, और अमरेंद्र बाहुबली, उस टाइम पे अमरेंद्र जो पहला वाला जन्म, किसी को मालूम नहीं हुआ तो मैं बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं, आप इमेजिन करो बाहुबली चल रही है, मैं अमरेंद्र बाहुबली, शिव कामिनी देवी, नहीं माते तो ओके तो अगर आपको याद होगा, ऐसे रोड मैप बना रहे थे और वो बोल रहे थे कि हम त्रिशूल व्यू करेंगे, यानी हम सोल्जर्स को इस तरह से खड़ा करेंगे ताकि हम अपने जो राज्य है उसको बचा सके, वी कैन प्रोटेक्ट इट, ओके आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, दिस इज व्हाट स्ट्रैटेजी, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, ये स्ट्रैटेजी है। तो जब भी आप कुछ प्लान करते हो, प्लान के पहले जो करते हो वो स्ट्रैटेजी। अच्छा ये स्ट्रैटेजी ऐसी क्यों बनानी चाहिए, स्ट्रैटेजी अब स्ट्रैटेजी क्या है, अभी के लिए जो भी है उसको शब्द को कैसे इंग्लिश में डालेंगे, देखो एट द एंड ऑफ डे ये पेपर में नहीं लिखना है, बाहुबली में कालिके टोल्ड, कालिके अटैक देम एंड आवर कटप्पा वाज इन त्रिशूल व्यू एंड कटप्पा वाज स्टैंडिंग हियर, Bahubali and Bhallal Dev, they both are fighting and he fight, but the Kalike people are so much, they enter this and they broke Trishul view, and after that Amrendra Bahubali, something happened, okay, everybody was going back, everybody was saying we will die, but Amrendra Bahubali, okay, have got jigra, and when that jigra he told what is death, ओके क्या है मृत्यु तो ये बीकॉम का पेपर नहीं है भाई ओके तो मेरा क्वेश्चन ये आ रहा था, स्ट्रैटेजी जब हम लोग बनाते हैं, हम हमेशा फैक्टर्स ध्यान में रखते हैं, फैक्टर्स, सर व्हाट इज द फैक्टर्स का लॉजिक, example, whenever I need to decide a strategy, I can just blindly decide a strategy. It depends on factors, or basically an analysis. And there are two types of analysis. One is internal analysis and one is external analysis. Example, when you thought of joining the class, or you may not have thought, you were on deciding factor, but you understood, okay, so you did understood in last 1 hour, bhai, question is like this, this is how the content is there. There are two factors. One is internal and external to choose the class. First, external, you understood the syllabus is like this. In external, you understood these are the changes which may happen. In external, you understood the question will always be new one. The question will not be repeated. This is external. Internal, do I have a capability of doing this much? No. Okay, or example, I can do, but it may take 120, 130 hours, which can be done in altogether how much hours? 60, 65. कंटेंट का मैं वापस बोल रहा हूँ 60-65 अपन कितने में लगा रहे हैं कंटेंट, और एक 10-15 घंटे अपन को लगेंगे किसमें, क्वेश्चन बैंक, रिवीजन। और अपना तो क्या देखो, ग्रुप 2 तुम्हारा बैच चलने वाला वैसे भी, क्योंकि मेरा खत्म होएगा, कॉस्टिंग और वो तो चलेगा ही, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। तो अपन तुम तो ऐसे भी आगे इधर क्या करोगे, फिर गोटा खेलोगे।
अपन तो जब तक तुम मतलब मैं तुमको बोल रहा हूं जब तक बैचेस चल रही मैं रोज आके रिवीजन लेते जाएगा। ओके जिसको मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन है, एक बच्चा भी आ रहा होगा मैं बैठेगा, मैं रिवीजन लेगा, एक भी आ रहा होगा तो मतलब सिलेबस खत्म होने के बाद भी, क्योंकि तुम तो आ ही रहे हो। तो एक ऑप्शन जो भी ऑप्शन रहेगा, बट दिस इज काइंड ऑफ व्हाट आई वांट टू टेल यू इज यू आइडेंटिफाइड योर इंटरनल एनालिसिस, यू आइडेंटिफाइड एक्सटर्नल एनालिसिस। कुछ शब्द सुना है इसके बारे में, इंटरनल एक्सटर्नल के बारे में? क्या सुना हुआ है कुछ? इंटरनल एक्सटर्नल को कुछ सुना है क्या? ओके शायद सुना हो शायद ना सुना हो। स्वॉट, कभी स्वॉट सुना है? स्वॉट का फुल फॉर्म स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जब इन्होंने त्रिशूल व्यू का डिसाइड किया, आई एम जस्ट रिलेटिंग दिस एग्जांपल, जिसको नहीं समझ में आ रहा है त्रिशूल व्यू क्या होता है, अपना सिलेबस नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। ये एग्जांपल इमेजिन करो, दिस इज किंगडम, ओके, एंड टू प्रोटेक्ट द किंगडम दिस इज त्रिशूल व्यू, यानी हियर ऑल सैनिक मतलब सोल्जर्स, नहीं तो वापस बोलोगे मां कसम सर इंग्लिश एंड हिंदी, इट्स अ कॉम्बिनेशन बड़ी। Okay, this is okay. All together, soldiers standing here, and every enemy was attacking from here. So it was protecting this, and here all soldiers were fighting. Okay, so the color change करता हूँ, but soldiers is of blue color. They are fighting. Now this is a study, but this study was based on what? Based on what are their strength, what are their weakness. Why did they approach this Trishul view? I know I am assuming you have not watched Bahubali, so I am explaining you the Bahubali only. So they understood the kingdom to protect, they don't have ample of soldiers to fight with the competitors. Competitor strength with number of soldiers is very high. They are having 1 lakh soldiers, we are having 20,000 soldiers. There is no way that our soldier will go and fight. So they identified first thing, strength and weakness. What are my strength? What are my weakness? What are the competitor strength? What is competitor weakness? And they identified 2 more things. What is 2 more things? One is opportunity and one is threat. So what is the meaning of opportunity and threats here? Basically they identified that here when they fighting with that blue color, there is opportunity, they can kill before they are entering here. And they understood they have 2 strength majorly. One strength is okay is Bahubali and one strength was Balaldev, matlab 2 kings. So they know, so they ensure, they will be ensuring the opportunities capitalized. Simple example. Okay, I am a shirt manufacturing company. Okay, I am a shirt manufacturing company. We understood one new material is in their market. New material has came in market which does not get wet. बरसात में पहन के भी निकले, शर्ट बनाया उसका, एक तो कॉटन जैसा कपड़ा होगा और बरसात में गीला भी नहीं होगा। यार ये क्या जबरदस्त है। और मेरे पास स्ट्रेंथ है कि मैं शर्ट बहुत अच्छे से बना सकता हूं, मेरे पास लोग हैं ऐसे स्किल सेट वाले। अब मेरे को बताओ मेरे पास स्ट्रेंथ है कि नहीं है? है। क्या मार्केट में अपॉर्चुनिटी आई और मालूम पड़ा ये अपॉर्चुनिटी हिट भी हो सकती है, लोग पसंद करना चालू कर रहे हैं, मैंने क्या करना चाहिए? मेरे स्ट्रेंथ को यूज करना चाहिए टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। तो इन्होंने अपने स्ट्रेंथ यूज किए अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए नहीं, थ्रेट को कम करने के लिए। थ्रेट को कम, क्योंकि थ्रेट है ना इनके लिए इनका किंगडम जाने वाला है ना बड़ी। तो मेरे को बताओ जब भी अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं, इन्होंने जो भी एग्जांपल दिया मैंने त्रिशूल व्यू, ओके, ये मैं जो स्ट्रेटजी बनाता हूं ये किस बेसिस पे बनाता हूं? डायरेक्टली स्ट्रेटजी बनाता हूं या एनालिसिस करता हूं? एनालिसिस 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल एनालिसिस का नाम स्वॉट, दोनों का कॉम्बिनेशन है। इंटरनल मतलब मेरा स्ट्रेंथ, मेरा वीकनेस। एग्जांपल, जब मैं सीए की पढ़ाई चालू कर रहा था या पढ़ रहा था तब मेरे स्ट्रेंथ क्या थे? स्ट्रेंथ थी थियरी, वीकनेस क्या था? प्रैक्टिकल। मेरा मतलब एकदम भयंकर वीकनेस था मेरा प्रैक्टिकल में। मैं चालू क्या करूं यही नहीं समझता था। क्वेश्चन पेपर हाथ में लगा, पहली कौन सी लाइन मारूं, ये ऐसा था, वीकनेस था मेरा। तो सर मैंने क्या किया? मैंने अपने स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज किया, ओवरकम वीकनेस। सेम लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं। तो अपने क्या होते हैं? 2 चीज होती है आपके पास भी, 2 चीज है आपकी। क्या है 2 चीज? स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। और मार्केट में आपको क्या मिल रही है? अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो मेरे को बताओ, ओके, इंटरनल एनालिसिस मतलब कौन सा एनालिसिस? फटाफट। स्ट्रेंथ एंड एक्सटर्नल मतलब, आई होप लॉजिक समझा। अपन अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्यों यूज करनी चाहिए? ताकि हम ओवरकम कर सके थ्रेट्स को या कैपिटलाइज करे अपॉर्चुनिटी। आई होप लॉजिक समझा। तो मेरे को बताओ स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहले एनालिसिस करूं या स्ट्रैटेजी बनाऊं फिर एनालिसिस करूं? एनालिसिस करने का फिर स्ट्रैटेजी बनेगा। आई होप एवरीबॉडी क्लियर।
इसको अपन बोलते हैं प्रोएक्टिव। क्या नाम दिया? प्रोएक्टिव। समझ में आ रहा है? पहले से सोच के, ऐसा नहीं हुआ आपने एग्जाम दिया, फेल हुआ और उसके बाद बैच ज्वाइन किया। कुछ समझ में आया? एग्जाम दिया, फेल हुआ, फिर बैच ज्वाइन करना, ये प्रोएक्टिव नहीं है। कुछ समझ में आया ये पॉइंट? तो प्रोएक्टिव कौन हो रहा है? जो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ रहा है, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स एनालाइज कर रहा है। मैं क्लास लगाने के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मेरा कंटेंट क्या जा रहा है। मैं बोल रहा हूं अपने स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स देखो, बेस्ड ऑन दैट ओके लड़ाई करो। लड़ाई करने के बाद अगर नहीं हुई लड़ाई और उसके बाद कुछ चेंजेस करने पड़े, देन इट इज कॉल्ड ओके। पहला क्या बोला था मैंने? एनालिसिस करके फिर मैंने स्ट्रेटजी बनाई, प्रोएक्टिव। तो मैंने इधर बाहुबली किंगडम में अगर आपने देखा होगा, जो मैं ये बना रहा था, ये पहले त्रिशूल व्यू बोलते हैं इसको। कौन सा व्यू? इनके एग्जांपल में मेरे को नहीं समझा त्रिशूल क्या है, लेकिन ये त्रिशूल व्यू है। तो ये कौन सी स्ट्रेटजी है? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? तो और एक वर्ड क्या होता है? ये त्रिशूल व्यू ब्रेक हो गया। स्क्रीन पे देख एक बार, ये ब्रेक हो गया, एनिमी ने ब्रेक कर दिया और सारे जन मर रहे थे, सारे जन मर रहे थे, सारे जन पीछे जा रहे थे और बोले आज खत्म, महिष्मती प्रजा खत्म 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 खत्म। एंड उतने में ओके अमरेंद्र बाहुबली अंदर जोश लेके आता है। ओके क्या है मृत्यु? दुश्मन को पीठ दिखा के भागना है मृत्यु, दुश्मन को पीठ दिखा के भागना है मृत्यु, मैं उस मृत्यु पे विजय करने जा रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो बाकी सब भी मोटिवेट हो गए, जो ऑल टुगेदर भाग रहे थे। किसी के तो हाथ पैर कटे थे, वो भी मोटिवेट हो गया, नहीं भाई मैं भी आ रहा लड़ने के लिए। आई होप आपने देखा ये ऐसा। अब ये क्या हुई? पहली स्ट्रेटजी थी हम कैसे बचाने वाले थे किंगडम, प्रोएक्टिवली। पर कैसे बचाने वाले थे? एनालिसिस करने के बाद देखा ना, पर क्या बचा पाए? अब मैं कैसे बचाने वाला हूं? रिएक्ट करके। ओके तो देयर आर टू वेज बाय विच वी डेवलप ए स्ट्रेटजी, टू वेज बाय विच वी डेवलप ए स्ट्रेटजी। व्हाट आर द टू वेज? प्रोएक्टिव, रिएक्टिव। आई होप दोनों पॉइंट क्लियर है। तो मेरे को बताओ प्रोएक्टिव और रिएक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? प्रो एनालिसिस, स्ट्रैटेजी। तो रिएक्टिव में स्ट्रैटेजी एनालिसिस नहीं होता, पर फेल हुआ, स्ट्रैटेजी नहीं थी, फेल हुआ, एनवायरमेंट में एनालिसिस किया ही नहीं और तब एनवायरमेंट का हैम्पर हुआ तुम पर और उसके बाद अपने स्ट्रैटेजी चेंज की। इट इज कॉल्ड रिएक्टिव। अच्छा मैंने क्या बताया? नया कपड़ा आया था, नया कपड़ा दिखा, मैंने शर्ट बनाना चालू कर दिया, ये कौन सी स्ट्रैटेजी? प्रोएक्टिव। एक मैडम है, मैडम भी यही बिजनेस में थी। मैडम बोली कुछ टेंशन नहीं, अपने कपड़े चलने ही वाले हैं, कुछ भी होने दो एनवायरमेंट में, अपना नहीं बिजनेस होता इंपैक्ट। ओके बाद में मालूम पड़ा मैडम को 6 महीने के बाद, मां कसम पब्लिक अपनी इनके जो क्लॉथ का पैटर्न है वो खरीद ही नहीं रही है। हर कस्टमर आ रहा है बोले वो न्यू कपड़ा चाहिए। अब मेरे को बताओ मैडम ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की ना। ओके ये कौन सी स्ट्रेटजी थी? तो प्रोएक्टिव और रिएक्टिव कौन सी बेस्ट होती वैसे? प्रोएक्टिव या रिएक्टिव? रिएक्टिव बेस्ट नहीं होती? फिर होती है पन 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 ऐसा। आई डोंट नो वेदर यू आई होप समझ में आया ना ये? तो कौन सी बेस्ट होती है? तो जिंदगी भर प्रोएक्टिव रहे, क्यों नहीं? ओके जिंदगी भर प्रोएक्टिव नहीं रह सकते, कभी ना कभी क्या करना पड़ता है? रिएक्ट। और वो रिएक्शन अपन कल देखेंगे। सी यू टुमारो, हasta la vista। ओके आई होप यू अंडरस्टूड द लॉजिक। टेक केयर बॉडी। स्टॉप स्ट्रीमिंग हो गया।